But people who are just there to mint quick money, I think startup is not the right place to mint money. It is one of the riskiest investment decisions to invest in a startup. Share market में अगर आप invest करते हैं, you know the background of the company. It has existed for a pretty long time, and there are chances it will exist, sustain, grow, and give you return. Startup already have a very short period of existence. Terminology बाद में आई थी, which is default alive and default dead, which means that will you be alive in the next 3 months, 6 months, वो default alive है, और will you die down because of lack of funds, वो default dead. तो हम एक काम करते हैं, हम faculties और students को fund करते हैं anywhere between a couple of lakh rupees to a crore of rupees. And I'm very happy to say in the past 1.5 year हम लोग 6 faculties को entrepreneur बना चुके हैं. They started their own startups. कि I am working in a startup A, क्योंकि वो एक फैशनेबल चीज़ है. B, which is funded by XYZ investor, क्योंकि वो भी एक बड़ी फैशनेबल चीज़ है. तो वो आजकल एक वर्ड यूज़ करते हैं लोग कि हमारा फ्लेक्स है, that we are funded by this investor and to an amount of this, or this is the valuation of the company where I work, and that is why I am working here. Plus it is also the leverage कि कहीं और jump करेंगे when they want to jump to a different employer, change the job. Obviously they know कि मैं उस background से आया हूँ, तो obviously my starting salary should be above this particular amount. So people take advantage of the current scenario. This cannot and will not last very long. Hi, this is Indranil and welcome back to our channel, The Spotlight Beyond Profession. In our channel, today we are having a podcast with Mr. Aditya Vyas. Aditya Vyas is the CEO of Drishti Group of IIT Indore. So Aditya Vyas की जर्नी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे through this podcast, and I hope you will be finding lot of insightful knowledge and lot of ideas about the startup world, about the presently what is happening in our country and the government policies as well. So please watch this entire podcast. You will come to know about Mr. Aditya Vyas as well, and कहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू किए थे, किस स्टेज में वो अपनी जर्नी को लेके आए हैं, और उनका आगे के विजन क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे. So please watch this entire podcast, and before that please subscribe our channel so that you can have all the updates through our channel, and also subscribe TSBP News and TSBP Shorts as well as TSBP Clips, जहां पे हम इस पॉडकास्ट के छोटे-छोटे हिस्से पब्लिश करते हैं ताकि आप एक कम समय में इस एंटायर पॉडकास्ट को भी कवर कर सके. So please watch the entire podcast with Mr. Aditya Vyas, the CEO of Drishti IIT Indore. First of all, thank you very much for coming to the studio, and thank you very much for joining our channel and podcast. The podcast name and the channel name is The Spotlight Beyond Profession, and obviously you are under the spotlight, and we call it Beyond Profession because apart from your professional journey and professional things, we will try to understand more about your other journey as well, कि आप कैसे और कहाँ से पहुँचे और आगे आपका क्या सोच है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं. And before I deep dive into this podcast, I have two disclaimer. First disclaimer is that my name is Indranil, so I'm a Bengali. So whenever I'll try speak in Hindi, you can laugh at me. I don't mind. I'm quite a bit habitual. And secondly, in this entire podcast, if I'll be asking anything to you and you don't want to address or answer, you can directly say no. There is nothing like avoiding anything because we do podcast which is completely unscripted, uncensored and unfiltered. So again, I just want to understand that थोड़ा सा अपने बेस के बारे में बताएं कि कहाँ से बेसिकली आप बिलोंग करते हैं और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे या इस चीज़ में इंटरेस्ट कहाँ से आया, and how you entered into this field, what you are doing today, and you are a known face in the world today. Thank you so much, Indranil, for having me here. I think making sure that this is uncensored, unfiltered is the best part. I hope I'll be able to answer most of the things that you ask. अगर कुछ बहुत ही dangerous आता है तो I'll try to skirt or avoid that. But anyway, thank you for the disclaimer. Quick background. So I'm an engineer. I did my master's from BITS Pilani. I started my own company just after my engineering in 2010. That was into embedded systems, which is electronics basically. And now people also associate IoT with it, Internet of Things. Mm-hmm. So we used to design custom boards, custom things, manufacture them and give it to small, medium and large clients. So there were too many small clients, there were a few medium clients, and let's say among large
clients. Bosch was one of them, Panasonic was another that we used to service, and then All India Radio, etc., etc. Whenever they had a thing that they wanted custom developed, they usually reached out to us through some or the other means, and we were decent in our job. Okay. We also used to train a lot of students for various colleges. That was because it was easy money in the initial days when we were short of corporate projects. So in the first couple of years, we taught, we built, we sold. Then we mostly got into the building and selling part, and the teaching sort of stopped gradually. Post that, I think after the first 5 years of doing all of this, we got into the field of solar, and due to which we got into the field of CSR implementation. Okay. So I used to work a lot with Tata Trust for solar and CSR implementation through their funds in various villages, primarily tribal villages of Rajasthan and Gujarat. So that opened a totally new area for me to understand and to develop. So that was in the energy sector? Solar energy, yes. Okay. So starting from home light system, giving it to families where there was absolutely zero electricity, not even electric wire. Even today they don't have it. Primarily because they live in forest areas where it is not allowed to get wiring and cabling done. Okay. Right? So they have to depend on individual solar units on their houses, small houses. And then we gradually moved up to doing various stuff for CSR in various villages. Again, all of these were tribal villages, so got a very different view from the very privileged life that I was living in Jaipur. This raw and real life things that you have often seen in movies like Swades, that were visible in true sense to me, and seeing a different lifestyle, seeing different people. I think that opened a lot many things, and my eyes obviously to the reality of where we are living. I think that all was going on somewhere in 2019, 18 late or 19 early beginning. I was approached by somebody who was looking for a tech entrepreneur, somebody who understands technology and who understands business, to be a part of CIIE, which was the incubator of IIM Ahmedabad. Now they are known as IIMA Ventures. So the name, corporate entity has changed the name. And obviously I wanted to continue my own business, but then getting the name of IIMA on my own CV was obviously a huge plus point for me. And I thought I should take the plunge. So that was the first job that I undertook. Before that, I was running my own business. And my first boss, manager was Chintan Bakshi. The first day I wrote a formal document for him. He returned it back to me completely in red. I felt like I'm a child again. But I think he also taught me a lot many things. He was the one who actually put me through the entire journey of understanding how a startup works and what are the phases of a startup founder's life. ये हम कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 2019. Okay. Just before COVID. Just before COVID, जी. So 2019 Feb I joined CIIE IIM Ahmedabad at their Jaipur office. So I was leading some programs in Jaipur, some programs in Gujarat at that point of time. And till August, I think I was fully enmeshed into the startup world. Okay. उससे पहले I was a entrepreneur, I was a businessman. बनाया, अपना profit add करा, sell करा, right? I did not understand the language of valuations and everything. Yes. You have to understand that I started in 2010, right? Startup का जो बड़ा अच्छा ढंग से हुपला आया है, that started I think with this government 2014 के आसपास. Yes, 14-15 के बाद आया है. तो I had missed that bus. हम अपने बिजनेस में अच्छे थे, कर रहे थे, जो फैनफेयर वाली जो वो पूरा मिस हो गया था जर्नी, क्योंकि वी वर वेरी बिजी इन डूइंग व्हाट वी वर डूइंग. तो पेपर में पढ़ लिया, ठीक है, फ्लिपकार्ट के साथ अच्छा हुआ, अमेज़न आ रहा है, फ्लिपकार्ट को टेंशन है, ब्ला 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 ब्ला, उबर आया, ओला आया, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट दैट वाज गुड. उसके अलावा गेटिंग इनटू द ऑल द वर्ड्स दैट स्टार्टअप्स यूज, लाइफ टाइम वैल्यू, वैल्यूएशन, कैक and all of this, ये सब पता ही नहीं थे. उस समय बिजनेस मींस प्रॉफिट एंड लॉस, बुक्स में क्या प्योर प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? फादर इज अ सीए, तो वो भी एक था कि प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस में धंधा नहीं करना, एंड बिलोंगिंग टू अ मारवाड़ी कल्चर, तो मनी इज एवरीथिंग इन अ बिजनेस. So 2019 में जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, आई लैब्ड इट अप विद बोथ माय हैंड्स एंड लर्नड, टुक मी 6 months really to understand everything about startups, and then I started speaking that language. Okay. उसके बाद में थ्रू अ प्रोग्राम नोन एज इनोसिटी,
which was supported by SAP through their CSR initiative, and a couple of other programs supported mostly by DST, Science and Technology Ministry, Government of India, and METI, which is Electronics and IT Ministry, Government of India. They funded my programs at CII, and we used to support lot many startups. So, उस दौरान around till COVID struck, we were able to support almost 150 entrepreneurs. जिसमें से करीबन 50 को हमने फंड किया था, 100 को we had just supported through mentoring and other और support. ये सारे गुजरात में और सराउंडिंग में हो रहा था कि नेशनली आप काम कर रहे थे? So 50% was in Gujarat and Rajasthan, जो SAP फंड से जाता था, and जो बाकी 50% है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड थे, they were spread across India. So उसमें tier 2 towns भी थे, like tier 3 towns भी थे, like Kota, Udaipur, tier 2 भी थे, like Jaipur, and tier 1 भी थे, like a Bangalore or a NCR or a Bombay and a Pune. So and then COVID struck, everything sort of went blank for a month or so. But during that point of time, I think because we were not able to go out, we were able to mentor a lot many startups and strategize with a lot many startups. And तब startups के साथ में और deeper bonding हो गई थी, because ना वो बाहर जा पा रहे थे बेचने, ना हम बाहर जा पा रहे थे इवेंट करने या कुछ भी मीटिंग करने. तो दिन भर all we used to do was talk with startups, really have a heart-to-heart discussion, understand what their problems were, and try to strategize with them कि जब market खुलेगा तब क्या कर सकते हैं. How can we actually go back with a bang? How can we capture this time when all people are down and out? How to help them conserve their cash? And all of this stuff. तो एक terminology बाद में आई थी, I think जब ये funding winter start हुआ, which is default alive and default dead. Which means that will you be alive in the next 3 months, 6 months, वो default alive है, or will you die down because of lack of funds, वो default dead है. So terminology came late, but I think we were discussing the same points with the startup, that can you stop your burn, can you stop your losses during this period of uncertainty, which is during the COVID lockdown and things after that, so that you can actually go back out with a bang with all the things that you have been able to develop during this time when the market reopens. In most cases, we were able to, with the help of obviously the founders, the startups did not die down. So that was the biggest achievement. I think very few, around 10% startups actually shut shop at that point of time. 90% survived that 1 year of turmoil. That's a big number. Good number. That is a big number, yes. And as soon as things opened up, 2021, CII signed a MOU with the government of MP, the Smart City. Okay. And they wanted to establish the Smart Seed Incubation Center here in Indore. The entire team was asked if somebody has a background in Madhya Pradesh or in Indore, etc., etc. Luckily, unluckily, fortunately, unfortunately, my wife belongs to Indore. Okay. So I was picked up कि तुम जाके एक बार कुछ देख कर आओ, just go and see if you can start something. और तब तक आप अहमदाबाद में थे? तब तक मैं अहमदाबाद, जयपुर दोनों जगह मूव करता था. Okay. Primarily based was in Jaipur, क्योंकि CII का वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में एक जॉइंट वेंचर है, which was known as Startup Process. So I was part of that also. So from Rajasthan JV to state government of MP JV, I landed up here. I took charge on 5th of August at Smart Seed. 16th या 18th September को हमने उसका formally inauguration करा, फीता कटवाया. 2021, yes. And this was just after COVID. तो जो भी entrepreneurial activities थी, जो भी ecosystem की activities थी, all of them were completely shut down. तो सब dead था literally. इंदौर एज अ सिटी स्टार्टअप कल्चर को लेकर. ओवरऑल सिटी भी काफ़ी सबड्यूड थी, बट स्टार्टअप कल्चर तो लिटिल रेड था. कोई मीटअप्स नहीं होते थे, फाउंडर्स आपस में बात नहीं करते थे. सो इट टुक प्लस आई डिड नॉट हैव माई ओन ग्राउंडिंग इन द सिटी. मैं पर्सनली किसी को जानता ही नहीं था. तो इट टुक सम टाइम, आई थिंक अ फ्यू मंथ्स फॉर मी टू गेन सम ट्रस्ट ऑफ सम पीपल. स्मार्ट सिटी CEO at that point of time, Rishabh sir, who is now corrector of Devas, obviously helped a lot. He happens to be of exactly my age, तो थोड़ा शायद वो bonding अच्छा था. Again, he's an IS, तो एक difference भी था. But then he would almost every second day at around 7 PM he would message me, आ जाओ, just हिंदी में आ जाओ on the WhatsApp. And that means कि Smart Seed से अपना पैकअप करो and जो रीगल के पास में Smart City का ऑफिस है वहाँ जाओ, and then meet sir, and then he would spend at least an hour or two to discuss कि इसको कैसे अपन अच्छा कर सकते हैं. I think it was his also one major posting. He's a young IS. So he also wanted the place to succeed. So that helped me.
कि I did not have to face any तो एक obstacles. mentorship, एक guidance थोड़ा सा yes. मिल जाता है, yes. which was very important as a new city as well. Plus all the connects that I wanted. Yes, true. कि अच्छा चलो ऐसा करो, IIT से MOU करो, IIM से MOU करो, SGIT से मिल के आओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ. And I was like, सर किससे मिलना है, रुको. He would give a call to somebody and numbers would start coming into my WhatsApp. And then once I called people, हाँ सर का phone आ गया था, आप आ जाओ. So everywhere I went, I had a red carpet because of him. So a lot of things that I was able to do in a 12-month period was all because of his support. I think connector at that point of time was Manish Singh sir. तो वो भी कई बार आते थे, क्या चल रहा है, and all of it. He would just walk in like that, क्या चल रहा है and all of that stuff. शंकर लालवानी सर MP अभी भी हैं, तब भी थे. उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता था. Some of his marketing activities used to get done from that place at that point of time. So he would again come in the evening after office hours, and he would just walk into my office and say कि आया हूँ, बस इतना आया हूँ. तो उनसे भी ऐसा हो गया था कि कुछ भी हेल्प चाहिए at a very senior level, तो सर 2 मिनट आपके चाहिए. And then he would happily click photograph, जिसको हम काफ़ी यूज़ करते थे. And कुछ भी बात करनी है कि सर ये सपोर्ट चाहिए, तो all of that was received. So being an outsider, not speaking the, I think just like you are from Bengal, not speaking the hardcore Indori language, Bhaiyu wali, I was very well received by the city. So that obviously helped. And then it was a 12-month time frame. 12 month पूरा करा, and then I told my boss Chintan sir कि सर 12 महीने हो गए, I would like to come back because my family, my wife, kid were there, and my kid was 1 year old at that point of time, so I missed that entire young वाली journey उसकी. तो सर ने कहा कि ढूंढते तब तक 1-2 महीने और रुक जाओ. So I spent I think 3-4 months as my notice period, and then finally told sir कि please अब वापस आना है. At that point of time, because I had met so many people, I was on a pro bono basis supporting many incubators in Indore. तो SGS ITS में प्रोफेसर गैवक हैं, yes. CID रन करते हैं. He used to call कि आदित्य जी आ जाओ, चाय पे बात करेंगे, तो उनसे बात होती थी. DAVV के डायरेक्टर टोकेकर साहब, I think he just retired or something. He used to call कि आदित्य आ जाओ. And IIT में प्रोफेसर Lad was there, who was running the place where I am currently. Yes. He used to say कि आ जाओ डिस्कस करेंगे. And मैं बस अपनी कार उठाता था, I had a old beat up Santro, मैं उठाता था, सब जगह पहुंच जाता था. Absolutely zero returns expectation. Yeah. कि चलो कुछ इंदौर में कुछ अच्छा कर रहे हैं उस थॉट से. So I told everybody कि I am going back. 2 महीने का मेरा नोटिस पीरियड बचा है, मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है तो मुझसे करवा लो. तो गैवक सर सेड कि नहीं, इंदौर इज लूजिंग अ गुड पर्सन. तो मुझे अच्छा लगा कि चलो somebody is valuing. DAV में जब सर को बोला तो उन्होंने बोला कि वी आर फॉर्मिंग आवर ओन कंपनी नाउ, एंड हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनो. सो दे एस्टैब्लिश्ड अ सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी. उससे मुझे डायरेक्टर बनाया, आई एम स्टिल द डायरेक्टर देयर. एंड लाड सर, भूपेश लाड सर, इज माई करंट मैनेजर, बॉस, प्रोफेसर एट IIT. ही सेड कि यहाँ आ जाओ. तो मैंने कहा सर क्या करना है? तो ही सेड कि शुरू से बिल्ड करना है. एंड माई थॉट वॉज अगेन कि CIS रिजाइन तो कर ही दिया है, कुछ नया अपना बनाऊंगा विद ऑल द लर्निंग्स. एंड यहाँ पे ही गेव द सेम इंडिपेंडेंस की खुद का बनाएंगे. तो बनाने की इच्छा थी, क्या बनाएंगे वो पता नहीं था. एंड देन यहाँ पे कुछ टारगेट थे कि ये ऐसा कुछ बनाना है. एंड ऑब्वियसली लर्निंग फ्रॉम चिंतन सर, कुणाल जो कि CII के CEO हैं फ्रॉम इंसेप्शन. आई थिंक उनका जो एक दिमाग में था कि व्हाट दे हैव बिल्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, वैसे कुछ बनाने की इच्छा थी. So I applied here formally. बड़े लंबे चौड़ा इंटरव्यू हुआ, रिटर्न राउंड एंड दिस एंड ऑन दैट राउंड. अनफॉर्चुनेटली तब ChatGPT नहीं था. 2022 की बात कर रहा हूँ अब मैं, 22 जुलाई. तब ChatGPT इतना अच्छा नहीं था, था ही नहीं शायद. तो खुद सारे आंसर लिखने पड़े, सारी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ी. एंड देन इंटरव्यू दिया. देयर वर 9 पीपल इन द इंटरव्यू, 4 फ्रॉम IIT इंदौर प्रोफेसर, 4 प्रोफेसर फ्रॉम IIT बॉम्बे, एंड अ सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम इंदौर. But the thought somewhere in the back of the mind was कि नहीं हुआ तो अपन अपना करेंगे ही. So I was very fearless in the interview. मुझे अभी भी याद है, मैं ऐसे अमिताभ बच्चन स्टाइल बैठा हुआ था, and जो क्वेश्चन पूछते थे जवाब दे रहे थे, because I had done everything which they expected From me to scratch do. even. Yes, from That scratch. was a plus point. तो बड़ा कॉन्फिडेंट इंटरव्यू दिया, एंड उसके शायद 2 हफ्ते बाद they got back, you have been selected, and then all the verification took place, and then I got onboarded. यहाँ पे आए तो झटका पड़ा कि क्योंकि आई वॉज नॉट हैंडलिंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम माई स्टार्टअप्स. यहाँ पे बहुत कुछ था. एक ऑर्गेनाइजेशन भी था, प्लस जो स्टार्टअप जो काम था वो तो था ही. तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड भी करना था फ्रॉम ऑलमोस्ट स्क्रैच.
So I started with 6 employees. Today we have 45. In October में मुझे 2 साल हो So जाएंगे. it's basically an incubation center. No, this is a TIH. The name is IITI Drishti CPS Foundation. It is part of a national mission by Government of India. We are 25 like us have been established across India by government. Ministry of Science and Technology, जिसको मैं बार-बार DST बोलूँगा, Department of Science and Technology, usually is the operating agency which takes care of our funds, takes care of our targets etc. reviews us. एंड हमें बोला जाता है, हम 25 के 25 को हब्स और इनोवेशन हब बोला जाता है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब और TIH. Okay. 1/3 of what we do is incubation, startup support. 1/3 we are supposed to do skilling or upskilling. So skilling students to make them employable and upskilling industry professionals to keep them gainfully employed in the economy. Right? Okay. So people who are at mid-level manager or even operator level in a factory, they trained at a different level in a different society. Now the technology has been all pervasive. हर जगह technology आ चुकी है. Can they sustain themselves in this technologically enabled manufacturing environment? So they are upskill develop करना yes. है. तो हम लोग उनको upskill करते हैं और students को skill up करते हैं कि ठीक है, cloud बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन students के hardcore curriculum में cloud आता नहीं है in most backgrounds. तो हम लोग बेसिक क्लाउड सिखाते हैं. हाउ डू यू एक्चुअली यूज क्लाउड, हाउ डू यू यूज एज्योर, हाउ डू यू यूज AWS, रेंजिंग फ्रॉम 1 day to 30 days का हम उनको वर्कशॉप्स देते हैं. Okay. Some of them are paid by the institute, some of them are taken care of by us. In some cases students pay themselves, but usually the fees is very subsidized. So 1/3 we do skilling, 1/3 we do startup, and the major component जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, that is technology development and commercialization. गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि जो अभी तक फंड दिया जा रहा है फैकल्टीज को, स्टूडेंट्स को फॉर रिसर्च, वेरी ऑफन इट एंड्स अप इनटू अ रिसर्च पेपर एंड अ पेटेंट. द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड डज नॉट रीच द इंटेंडेड ऑडियंस. इट इज नॉट कमर्शलाइज्ड. ये गवर्नमेंट को समझ आ चुका था. सो दे डिजाइन दिस एंटायर TIH कंसेप्ट टू पिक अप टेक्नोलॉजीज विच कैन बी कमर्शलाइज्ड. सो वी डोंट पिक अप वेरी अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजीज. We pick up technologies at a technology readiness level of 3 and beyond. 3 means proof of concept है. Proof of concept है. ये नहीं कि पता ही नहीं हो सकता है कि नहीं. Okay. हो सकता है ये पता लग गया. How do you take it further? तो हम एक काम करते हैं, हम फैकल्टीज और स्टूडेंट्स को फंड करते हैं anywhere between a couple of lakh rupees to a crore of rupees. And इनसे जो टेक्नोलॉजी बन रही है उसको हम सपोर्ट करते हैं, because again we have to understand that faculties are good researchers. Yes. They are not entrepreneurs. उनको बिजनेस एंगल समझ नहीं आएगा, वो बना के दे देंगे लेकिन उसकी पैकेजिंग पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट देयर बैकग्राउंड. How it will be sellable? Yes, they don't understand. They understand a project, not a product. Yes. So we become a bridge to convert it from a project to a product. And I'm very happy to say, in the past 1.5 year, हम लोग 6 faculties को entrepreneur बना चुके हैं. They started their own startups. That's really good. Including from IIT Indore, including from IIT Bombay. जो कि अमेजिंग थे ऑलरेडी. हमने उनके अमेजिंगनेस में कुछ नहीं बढ़ाया, बट वी जस्ट गिव देम अ कॉन्फिडेंस. अपस्केल कर दिया आपने. हमने उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस, आई कैन नॉट यूज दोस वर्ड्स, हमको सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया कि सर, मैम, इफ यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, वी विल मेक श्योर दैट यू सक्सीड एज एन एंटरप्रेन्योर आल्सो, बिकॉज द टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट दैट यू हैव डेवलप्ड इज अमेजिंग. इन सम अदर केसेस जहाँ पे फैकल्टी ने कहा नहीं, आई एम गुड एट रिसर्च, आई एम हैप्पी टू कंटिन्यू दिस, ये बन जाएगा, फिर मैं कुछ और प्रॉब्लम पिकअप करूंगा या करूंगी, एंड आई वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. उस केस में वी पिक अप द टेक्नोलॉजी एट अ पर्टिकुलर स्टेज. वी इधर गिव इट टू अ स्टार्टअप कि भैया अब तुम इसको फिनिश करके सेल करो, और आई हैव माई ओन टेक टीम ऑफ अराउंड 14 odd people जो कि इसको इम्प्रूव करती है, एंड देन वी डू अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडस्ट्री और एंड यूजर, जिसमें वॉट एवर रेवेन्यू कम्स इन, वी अगेन शेयर इट बैक विद द इनोवेटर और द फैकल्टी कंसर्न्ड. अभी अगर थोड़ा सा मैं इसको समराइज करूं, तो आपके इस पूरे सेंटर में आप कुछ एंटरप्रेन्योर्स को भी डेवलप करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच लेवल, एंड एट द सेम टाइम जो स्किल्ड है, जिसको हम आज की तारीख में डिजिटल वर्ल्ड में सेमी स्किल्ड बोलते हैं शायद, उनको आप अपस्केल भी करते हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है. राइट. सो इट्स ए टोटल सेंटर जहाँ पे एंटरप्रेन्योर भी क्रिएट हो रहे हैं, स्किल भी अपस्केलिंग हो रहे हैं, सो दैट दे शुड बी मैचिंग टू द वर्ल्ड. एंड एट द सेम टाइम जो फैकल्टीज हैं जो ऑलरेडी ऑन जॉब है एंड एकेडमिक्स में है, उनको भी आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं टू एन एंटरप्रेन्योर. एंड स्टूडेंट्स आल्सो. एंड जब आप इनको कन्वर्ट करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, और जब आप इसको एक बिजनेस मॉडल पे लेके जाते हैं, सो व्हाट वुड बी देयर रोल? Are they will be converted as a founders or entrepreneur or any position they will be holding,
or they will be just selling the product to the some business owners and they will get exit out of it. So what is that process? Okay, so in most cases, when I talk about primarily about IITs, so these faculties become owners, equity owners, shareholders of the company which is formed, of the startup which is formed, but they usually take a non-executive role. Okay. That means because these faculties are already employed by the government, IITs are government owned, right? So they are employed by the government. तो ये faculties अपनी job नहीं छोड़ते. They don't take out any salary or money from the company to themselves. Okay. Because they are suitably compensated by the government. They become the advisor kind of it. They become non-executive directors. Okay. Okay, they are directors but non-executive directors. And then there are a couple of more persons on the directorship who are full-time into the company and they run the company on a try to run it on a profitable basis. The idea is that as and when faculty may choose to either convert it into a full-time thing, they may move out of academics, or at one point of time they may sell their equity to the other founders or somebody else coming from outside, and they may take an exit and remain as a consultant. It is up to the faculty. In a particular case, a faculty from Punjab University decided to leave his job and start the name of company is Exergy Innovations. Okay. Start the company on a full-time basis. That is an individual choice. It is individual choice. We cannot if they force see them. that better future over there, they can shift from job to entrepreneurship. Yes. Now, I'm just going back to some extent and I want to go for certain normal discussions which is happening in present time. Sure. अभी अगर आज के तारीख में अगर हम बात करें इन 2024 एंड फ्रॉम लेट 2023 ये जो शुरू हुआ है कि इन स्टार्टअप वर्ल्ड देयर इज ए डिक्रीज एंड सब्सटेंशियल डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ फंडिंग फ्रॉम द एंजल इन्वेस्टर और वीसी. और हिंदुस्तान में जो वीसीज हम देखते हैं या जो एंजल इन्वेस्टर्स हम देखते हैं, शायद उनमें एक चीज की कमी है कि दे डोंट अंडरस्टैंड द एक्चुअल रोल ऑफ एन इन्वेस्टर्स ऑन स्टार्टअप्स. आज की तारीख में इंक्यूबेशन सेंटर तो बहुत है, बट इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट टू मेक श्योर कि दे शुड रेज द फंड. इंक्यूबेशन के बहुत सारे अलग फंड भी होते हैं, बट लॉट ऑफ पीपल टुडे कम्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर जस्ट टू रेज फंड. उनका प्रेजेंटेशन या उनका तरीका ही बिजनेस मॉडल वो उस तरीके से बनाते हैं ताकि वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके. सो हाउ यू फाइंड दिस फिजिबल, लॉजिकल एंड द राइट अप्रोच टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? All right. I'll perhaps answer it in some parts. Let me know if I miss out something. I'm more than happy to add to it. We call it playing the valuation game, right? So many founders, where there is not much substance in what they're building, or another word that we use internally is season के सौदागर, कि जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है उसको पिकअप कर लो. फॉर एग्जाम्पल अभी जेन AI है, जनरेटिव AI, and try to build a solution quickly in that regard. Onboard a few users who may or may not be paying you, लेकिन number of users अच्छा सा कर लो, and then try to upsell to each subsequent investor कि देखो हम इतना अच्छा कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी में हम ही फर्स्ट हैं, या we are the early players, तो every next investor will give you a higher valuation. पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट देते रहिए and people are happy. This is almost like a Ponzi scheme which does not sustain for a very long time. Until unless there is a real business model which is coming up from that particular technology or particular thing that you were building. So ऐसे startups usually dirty the pool and die down pretty soon. The story does not last beyond 1 to 3 years. 1 to 3 years भी इसलिए क्योंकि with the funds that they have raised, they're able to sustain themselves for that particular time period only. Yes. And then many of them become serial entrepreneurs कि next technology क्या आ गई है, अब उसको उठा लेते हैं. तो पहले AI था, अब Gen AI है, अब next देखते हैं क्या आने वाला है. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं. They usually dirty the pond, they usually dirty the pool. बाकी लोग उनकी वजह से बदनाम होते हैं. And the good investors or the first time investors who have lost good money onto such startups because they did not have the understanding of the founder or the technology or the entire landscape, they usually shy away from investing. इसलिए ओवरऑल जो पूल है वो रिड्यूस होता रहता है धीरे धीरे. ओनली सीरियस इन्वेस्टर्स और पीपल विद डीपर पॉकेट्स एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टे इन द पूल. I feel this is also good on some part. Yes, it is important that the pool should grow, but people who are just there to mint quick money, I think startup is not the right place to mint money. It is one of the riskiest investment decisions to invest in a startup. Right? Share market में अगर आप invest करते हैं, you know the background of the company. It has existed for a pretty long time, and there are chances it will exist, sustain, grow, and give you return. Startup already have a very short period of existence.
the founders in most cases don't have a experience of running something similar or building something up to a scale in most cases. जब कि कोई फर्स्ट टाइम फाउंडर होता है या इनएक्सपीरियंस्ड होता है तो आप बहुत सारे वेरिएबल्स अननोन वेरिएबल से पैसा लगा रहे हैं. सो ओनली दोज पीपल शुड पुट इन मनी हु हैव इनफ टू लूज आउट कि ठीक है दिस इज 1 CR व्हिच आई हैव केप्ट सेपरेटली. अगर इस 1 CR से मुझे कुछ रिटर्न मिलता है अमेजिंग, एल्स आई एम रेडी टू राइट इट ऑफ मेंटली. एंड ऐसा नहीं होगा कि इसको राइट ऑफ करने से आई हैव अ इशू ऑफ माय ओन सस्टेनेंस. ओनली देन यू शुड बी इन्वेस्टिंग दैट सॉर्ट ऑफ मनी इनटू द स्टार्टअप. तो हर कोई एंजल इन्वेस्टर लिखना चाहता है 2 लाख रुपए का चेक काट कर, उस 2 लाख से रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं आ सकते. इफ़ यू लुक एट सीरियस इन्वेस्टर्स और फैमिली ऑफिसेज, वो बहुत ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड आउट करती है. 15, 20, 25, 30 स्टार्टअप इन्वेस्ट करती है विद द होप दैट वन ऑफ देम विल ग्रो एंड पे बैक द टोटल अमाउंट दैट देव इन्वेस्टेड प्लस मल्टीपल टाइम्स ऑफ व्हाट देव इन्वेस्टेड इन ऑल द स्टार्टअप्स कंबाइंड. तो पूल छोटा हो रहा है बट सीरियस इन्वेस्टर ही बच रहे हैं. दोज हु अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स, दोज हु आर एबल टू ऐड सम वैल्यू टू द स्टार्टअप, तो ये अच्छी बात है. दैट इज व्हाट आई थिंक. एट द सेम टाइम हम क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न न्यूज़ को एप करते हैं, कॉपी करते हैं, बहुत उससे इंस्पायर होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग डर के बैकआउट कर जाते हैं कि पैसा नहीं है. एज पर माई ओन अंडरस्टैंडिंग एंड माई ओन एक्सपीरियंस विद माई ओन स्टार्टअप्स, आई फील इफ यू हैव अ गुड बिजनेस इन प्लेस, if you're able to build something that adds value, there is still a lot of money. People have the money, they're not investing out of fear. But उनको कुछ बहुत अच्छा दिखता है तो they put their hand in their pockets, they take out the money and they actually invest in a startup. जो बहुत बड़ी डील्स होती थी वो कम हो रही हैं because yes, people across the world are cautious. Most of the bigger money that was coming in through FDI, was coming in mostly from external investors. वो obviously कम हो गया है because of slowdown across the world post-COVID. UK, US, all of them have been into recession, have come out or still are in the threshold of a slowdown or a so-called recession. इसलिए वहाँ से पैसा आना obviously कम हुआ है. But they also, the people who have money there are looking for good valuations, good deals. In fact, on a very personal level, last time जब प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था इंदौर में, तो many people came, some of them got connected with me, we were also there, and many of these people who have lived their entire life in US, they have a lot of savings now, and उनको US में कोई अच्छी डील मिल नहीं रही, सब कुछ इन्फ्लेटेड मिल रहा है. They have reached out to us कि आदित्य IIT की जो tried tested startups हमें दो, we will invest in them. So now we are, after we have sort of matured over the past couple of years at Drishti, we are now reaching out for government to get the right approvals to get foreign funding into Drishti and then invest further into startups. So money still exists. Bigger check sizes may be reduced a few, but those who have a substantial business in place and are seeking at a decent valuation, I'm very sure they will get the right money at the right time. Okay. Now my second point is that, which is also very, very practical in today's time, that गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत फोकस है कि एंटरप्रेन्योर बने एंड जॉब क्रिएट हो, बिकॉज उन्हें कुछ फंडामेंटल दिखाना होता है, उनका पेपर बैलेंस ठीक करना होता है टू गिविंग जॉब्स. इतने नंबर वो लोग कमिट कर देते हैं पब्लिक को. सो जब आप एंटरप्रेन्योर बनाते हैं सो देयर एट फंड इन्फ्यूज्ड होते हैं. और आज की तारीख में फंड की सस्टेनेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब देयर इज ए लॉजिकल एक्सपेंडिचर एंड लॉजिकल बैलेंस शीट एग्जिस्टिंग. जब एक्सेसिव फंड्स एक्सेसिव वैल्यूएशन के वजह से आ जाते हैं, so the expenditure which is not under control in many of the times, because you don't value that investment and you don't value that money. So जब आप उस inflated valuation को देखते हुए inflated salary pay करते हैं या inflated expenditure करते हैं for promotional activities and events, we had seen in past in many of the big startups as well going down drastically. So till the time they are having that kind of funds, they are just throwing it out, Splurging. Once it has over, then you get a negative impact, and that negative impact go to multiple entrepreneurs who are actually trying to do their good job. So ये जो inflated employment है, inflated salaries हैं, इसको आप कितना लॉजिकल समझते हैं, and how much it is impacting at your level as well? It impacts everyone. For example, if I am trying to build a TIH today, I am also running a sort of funded startup, right? So government funds me today, but the government expects that I should become self-sustainable in the future, in near future. So if I go out in the market today to hire technology folks, to hire managerial folks, I see that the salaries are highly inflated. And if I actually onboard a large army of people to work with me, I am not very sure whether I'll be sustainable to pay those salaries once the government support ends. Right?
So obviously the market, as far as salaries of, I'll pick up specifically technology folks is concerned, good folks is concerned, it is pretty high. The salaries are pretty inflated. I don't have a number to put which is the right salary for a right person. If there is a demand, I'm sure to match that demand, the salaries will be increased. But obviously there is a supply glut for seriously good people in the technology industry, and that is why salaries are inflated. But it is hurting everybody, not only the bigger players who are supported by various funds, but also the smaller, younger players who don't have a lot of funds to splurge onto salaries. And that is why perhaps the quality of products that are coming out might not be amazing because you don't have amazing talent to build those products at a decent price. So it is hurting the entire industry, startup industry, as well as the entire economy. So very good people from, let's say, Infosys, TCS are moving out to get into a startup because of the amazing salary hikes. But with this easing down of funding, external funding, I think some things have now gotten back to, let's say, slightly sensible values, salary specifically, and people are again trying to get back into stable jobs. बिकॉज मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बिकॉज व्हेन आई मीट स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स जब बात करते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पे दे यूज टू डिस्क्लोज कि हमारे पास ये फंडिंग है, Yes. या हमारे पास इतने बड़े बड़े फंड एंजल इन्वेस्टर्स या Yes, वीसीज yes, है. yes, yes. सो वंस दे गिव दैट बैकअप इन देयर माइंड एज वेल, तो उनके भी दिमाग में कुछ तो काम करता होगा. Right. बर्न करने के लिए हमारे पास ये है, और उन्हीं को ही लोग ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं तो बिकॉज दोनों- उनके पास फंड्स हैं. दो चीजें हैं. पहला, till the startup does not show कि मेरे पास इतने पैसे हैं, people don't join Yes. with the fear कि पैसे खत्म हो गए तो how will you pay us salaries. ट्रू, वेरी ट्रू. तो वो पैसे दिखाना जरूरी होता है. I have a approved budget of 100 CR from Government of India. So even when I hire, I tell people कि it is a Section 8 company, but we have this budget from Government of India. Some part of it has been spent, other part remains, and we will be in a good position to pay you salary. So only then people join because everybody wants stability if they're in a job. True. Right? Second part, I think people also are enamored by these big names कि I am working in a startup, A, क्योंकि वो एक fashionable चीज़ है. True. B, which is funded by XYZ investor, क्योंकि वो भी एक बड़ी fashionable चीज़ है. तो वो आजकल एक वर्ड यूज करते हैं लोग कि हमारा flex है that we are funded by this investor and to an amount of this, or this is the valuation of the company where I work, and that is why I am working here. Plus it is also the leverage कि कहीं और jump करेंगे when they want to jump ship, jump to a different employer, change the job. तो obviously they know कि मैं उस background से आया हूँ, तो obviously my starting salary should be above this particular amount. So people take advantage of the current scenario. This cannot and will not last very long. Like all bubbles, this will also reduce. मैं नहीं कहूँगा burst करेगा. This also reduce, but the government. अभी एक दो दिन पहले ही एक स्टेटमेंट आया है जो बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर ने दिए हैं कि जैसे कोटा में कोचिंग सेंटर है, वैसे बैंगलोर में वैसे ही बन गया स्टार्टअप वर्ल्ड, और ऐसे ही इनके भी हालत है. इसमें से 2-4 ही काम के हैं, बाकी सब बंद होने के लिए ही बने हैं. So this is a very negative narrative that go to the startup world. Yes, Mr. Amit Kardeko के founder. Yes. हाँ. तो because I come from Jaipur, तो often he is called for various events in Jaipur. अगर वो जयपुर में तो अटेंड करते हैं. तो एक दिन ऐसे उनको किसी ज्ञान सेशन के लिए बुलाया था at a CII मीटिंग. Okay. CII ने स्टार्टअप्स के लिए किया था. At the end he said कि देखो, सच्ची बता रहा हूँ, अगली बार मैं आऊँ चाहे कोई भी आए, ज्ञान सुनने मत आना, काम करो अपना बैठकर. If you stay longer in your office, you'll do better in your startup than coming to listen to people like me. तो I think same चीज़ बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर ने बोला है कि I see too many founders in cafes and everywhere around discussing or pitching their startups. Yes. Build कब करोगे, वो कोई देख नहीं रहा, right? True. As compared to that, if people see the real startup that have become big, founders spend 7-day week. 7 दिन वो काम करते थे. They spent literally crazy hours working और understanding कि build क्या करना है. Teams were all of bachelors, literally staying in the office. इसमें जब नारायण मूर्ति ने 70 घंटे पर वीक का जब बताया, तब ट्रेंड करने लगे और ट्रोल होने लगे. आप रियल स्टार्टअप की जर्नी निकाल के देख लीजिए. आई थिंक 70 घंटे से ज़्यादा है. बिल्कुल ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है. Anywhere where you want to build something, sir, I think you are building your own business through this channel. I am trying to build Drishti along with my team. My founders are trying to build their own company.
फॉर दोज हु आर रियली वर्किंग, ट्रस्ट मी, अगर अच्छा काम है, अच्छी चीज की जरूरत है, इट इज रेलेवेंट टू देम, मैं उनको कहूँगा सैटरडे को शाम को 8 बजे ही करना है. ऐसा नहीं कि सर वीकेंड है अब तो हम बात नहीं कर पाएंगे ना, वी आर गोइंग आउट पॉपिंग. हाँ ठीक है, यू डू इट वंस अ मंथ, ऑब्वियसली पीपल वांट टू वेंट आउट, वांट टू रिलैक्स, वो पॉसिबल है. बट आप सैटरडे 8 बजे उनको कहेंगे, दे विल डेफिनेटली बी देयर. मैं उनको बोलूंगा संडे 4 बजे फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाओ, दे विल डेफिनेटली कम देयर इफ दे आर रियली बिल्डिंग समथिंग. True. People have to have rest, they need to spend time with their family, everything is okay, but at the same time when it comes to work you have to deliver and be there at that point of time when you're required the most. तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. इफ यू आर द फाउंडर, यू आर द की एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यू हैव टू डिलीवर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वो एक फैक्ट है. आई हैव सीन माय प्रोफेसर हु इज, वो तो प्रोफेसर है, ही इज इन अ गवर्नमेंट जॉब, राइट, प्रोफेसर लाड. बट जब हमें क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना होता है, आई टेक हिम टू दिल्ली और बॉम्बे और समवेयर की प्रोफेसर आएंगे तो ऑब्वियसली सीरियसनेस और अच्छी दिखती है हमारी. एंड हम 4 मीटिंग बैक टू बैक दिल्ली में डिसाइड कर लेते हैं कि पहले ये करेंगे गुड़गांव में, फिर फरीदाबाद चल जाएंगे, वापस सेंट्रल दिल्ली में आएंगे, फिर नोएडा में आएंगे. एट द एंड ऑफ द डे 9:30-10 बजे हम अपना डे क्लोज करते हैं. डिस्पाइट इट बीइंग नॉट हिज जॉब, ही स्टेज, रन्स विद अस, मिसेस हिज लंच, टी, एवरीथिंग, कि सुबह से सिर्फ 6 कप चाय पी है, कुछ खाया नहीं है, बट ही मेक्स श्योर ही इज विद अस because he also understands कि कुछ build करना है. Yes. And best part that I luckily have got, he wanted to set an example for IIT Indore. His is the first startup led by a faculty from IIT Indore. So he is not only a faculty, he is also a startup founder. तो दोनों जर्नी जीते हैं, इसलिए he backs us to the hilt कि करना है, चलो करो, मैं देखता हूँ उस पीछे. कुछ आप लोगों की वजह से ये बैलेंसिंग आउट हो रहा है. हाँ शायद. Now I have another thing, that government is also very focused on entrepreneurs and they also want this entrepreneurship. तो जॉब के ऊपर भी एक फोकस है, एंटरप्रेन्योर बनाने के भी फोकस है. एंटरप्रेन्योर से जब आप बात करते हैं या बिजनेस से जब आप बात करते हैं, जब लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है. जब आप जॉब देना चाहेंगे तब आपको वो स्किल नहीं मिलेगा जॉब में जो आप डिमांड कर रहे हैं या जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है. तो ये जो एक अलग प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस कैसे करेंगे और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बिकॉज मैं जॉब देना चाहता हूँ, मुझे ढंग के लोग नहीं मिल रहे हैं, सरकार बोल रही कि जॉब नहीं है, या जो बच्चे आजकल धरना देते हैं कि जॉब नहीं मिल रही हमें. क्या सरकारी जॉब ही एकमात्र ऑप्शन है जिसके पीछे आपको भागना है, और दूसरा स्किल डेवलप करेंगे तो शायद उससे भी बेहतर कुछ कर सकते हैं? आई थिंक जो पुराना थोड़ा थॉट प्रोसेस चला रहा है मल्टीपल फैमिलीज में, कि सरकारी जॉब ही बेस्ट है, स्टेबल है, ये है, वो है. अभी अगर आप किसी सरकारी एम्प्लॉय से मिलेंगे तो आपको दिखेगा वो भी उतना ही काम कर रहा है जितना पर ऐसे प्राइवेट एम्प्लॉय करता है. बल्कि प्राइवेट एम्प्लॉय तो फिर भी मोस्टली ऑफिस में काम करेगा इन मोस्ट केसेस. गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये भी होता है कि तुम्हें इस ड्यूटी पे लगा दिया, उसमें लगा दिया, तुम वहाँ भी जाओ. तो द लाइफ इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो. आप गवर्नमेंट बैंक में जाइए, रात को 8 बजे तक वो भी काम करते हैं, उनके भी टारगेट्स होते हैं टू सेल इंश्योरेंस एक्सेट्रा, लोन्स एक्सेट्रा. बट येस, द मेंटालिटी स्टिल एग्जिस्ट कि सरकारी नौकरी चाहिए, जिसकी वजह से धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं. एंड व्हेन यू गो टू दीज क्लासेस, जो कोचिंग क्लासेस होती हैं, वहाँ पे आपको एक हॉल में 400 लोग भरे हुए देखेंगे जो सांस नहीं आती. आई थिंक रिसेंटली एक डेथ हुई थी IAS कोचिंग सेंटर में इन दिल्ली. ऑल ऑफ दैट इज अ प्रॉब्लम. आई डोंट सी अ सॉल्यूशन इन नियर फ्यूचर फॉर दैट, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस चला रहा है कि बनेंगे तो सरकारी एम्प्लॉय बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे. इस पूरे प्रोसेस में लोग बाग 3-3, 5-5 साल वेस्ट कर देते हैं अपने तैयारी करते करते. जो उनकी कोर स्किल थोड़ी बहुत थी, अगर कोई BCom था उसको अकाउंटिंग आती थी, कोई इंजीनियर था उसको बेसिक टेक्नोलॉजी आती थी, वो भी वो भूल जाते हैं क्योंकि सिर्फ वहाँ पर वो अपनी बेसिक तैयारी कर रहे होते हैं. एंड देन पीपल रियलाइज कि 5 साल आपने एक एग्जाम भी नहीं निकाला तो आपको कोई नौकरी देना भी नहीं चाहता. अदर एंड पर जो आप कह रहे हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट होता है या 1-2 साल ट्रेंड होता है, उसको दे डोंट हैव द राइट स्किल सेट फॉर द राइट जॉब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इसका एक हमने व्हेन आई यूज्ड टू रन माय ओन कंपनी, तब हमने एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश ये की थी. अगेन दिस इज इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये भी कार देखो से हमने उठाया था. कार देखो एवरी मंथ बोथ द फाउंडर्स आर फ्रॉम IIT दिल्ली पास आउट, राइट. उनको भी जयपुर में जब स्टार्ट करी कंपनी तो अच्छे लोग नहीं मिले, टेक लोग नहीं मिले थे, टेक डेवलपर्स वगैरह नहीं मिल रहे थे. सो एवरी समर दे यूज्ड टू पिक अप 200 और समथिंग स्टूडेंट्स, चार्ज देम 10,000 रुपीज आई थिंक पर स्टूडेंट, एंड यूज्ड टू ट्रेन देम फॉर 2 months. खुद उनके डेवलपर्स एंड फाउंडर्स ट्रेन करते थे, क्लास लेते थे एंड शैडोइंग करवाते थे कि डेवलपर के साथ में 4 लोग बैठे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, सो दैट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ अ रियल लाइफ डेवलपर वर्क्स एंड किस क्वालिटी का आपको कोडिंग आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी. ऑल दोज पीपल हु आर गुड, लेट्स से 200 में से 50 अच्छे निकल गए, दोज 50 वर गिवन एन ऑफर लेटर. दे
मे और मे नॉट ज्वाइन कार देखो, दैट इज देयर विश, राइट, बट आपके पास एक ऑफर लेटर आ जाता है. जो बाकी 150 निकलते हैं, दे अगेन हैव बीन ट्रेन्ड बाय कार देखो. They are good. They have shadowed a real developer. They usually got absorbed across the industry. तो हम भी सेम करते थे. We used to train people, charge again 8,000, 10,000. Again, I'm talking about 2011 to 2015 वाला time period. And ये जो बच्चों को मैंने ट्रेन करते हुए फीस ली, तो मुझे ये कभी नहीं चुभा कि यार मैंने ट्रेन करा और बच्चा भाग गया. उसने मुझे फीस दे दी. He has done his duty. Now the ones that I liked, those who wanted to join me because they knew my style of working, I knew their style of working, and there was a general bonding between us because एक तो एज गैप उस समय कम था obviously. I was 2010 ग्रेजुएट, बच्चा अगर 11 में या 12 में ग्रेजुएट हो रहा है, उससे 2 साल छोटा होगा. तो वो भैया वाला कंसेप्ट था कि भैया साथ में काम करेंगे and all of that. So we used to build like or work like a mission or with a purpose, and that used to work very well for us. तो अगर पॉसिबल है तो प्लीज हायर सम स्टूडेंट्स, ट्रेन देम द वे यू वुड लाइक योर एम्प्लॉइज टू बी वर्किंग और ट्रेन्ड. For those who want to stay with you because of all the good things that you do and you are, let them stay. For others, let them find something good. And you may charge a small amount from them. 5,000, 10,000 देना in most cases लोगों को चुभता नहीं है. And then आप 20 लोगों को एक साथ ट्रेन कर रहे हैं, 10,000 everybody is paying for that particular month, तो you get a couple of lakh rupees. तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपने 2 घंटे दिन के वेस्ट कर दिए because you have been suitably remunerated for that particular thing. Plus, you're not then taking a risk by hiring an employee. आप उसका साथ में 1-2 महीने स्पेंड कर चुके, आपको पता है वो अच्छा है कि नहीं है, राइट. सेम लोग कुछ करते हैं कि पहले इंटर्न ले लेते हैं खूब सारे एंड देन दे सी कि किसको रखना है किसको नहीं रखना. उसमें यूजुअली थोड़ा बैड ब्लड आता है कि यार फ्री में काम करा लिया. तो हम तो कह के ये लेते हैं कि भाई ट्रेनिंग करवाएंगे, पैसे लेंगे, अच्छे हुए तो रखेंगे, नहीं तो यू आर देन वेल ट्रेन्ड, यू कैन फाइंड आउट अनदर जॉब. दूसरी चीज, TIH like us we are doing across India. अगेन हमारे लिमिटेशन है नंबर की, तो हम ऐसा नहीं कि हजारों के साथ भी काम कर सकें. लाइक पिछले 2 साल में हमने 25 लोगों को ट्रेन करा है एंड उसमें से 13 लोगों की जॉब लग गई है. स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं जी. गुड नंबर, बट अगेन शायद 2500 के 2500 के लगनी चाहिए थी. बट हमारी भी लिमिटेशन है बहुत सारी कि वी डोंट नो एज इन इंडस्ट्रीज में सबकी जॉब लगवा पाऊँ. तो उस तरफ कोशिश जारी है. तभी वी स्टार्टेड रिसेंटली वर्किंग विद इन्फोबीन्स फाउंडेशन, जो इन्फोबीन्स का CSR आर्म है, wherein with them at their location, with their trainers, which we take care of the costs, we have onboarded 300 students. 300 बच्चों को हमने ऑनबोर्ड करा है, जिसको ऑल ओवर MP से स्काउट करा है. पेरेंट्स से बात करी, इनके कॉलेजेस में बात करी कि साल भर ये बच्चे हमारे साथ में रहेंगे. आप साल भर इनको दोगे कि नहीं दोगे, ऐसा नहीं कि आप इनकी शादी कर दो या आप इनको कहीं 2 महीने के लिए खेत में काम करने के लिए बुला लो. We train all these 300 students from Monday to Saturday free of cost. Professional trainers, full-time trainer, 1 person, 1 machine. हर बच्चे को एक PC दिया गया है कि भैया तुम इसी पे काम करोगे, तुम्हारा है, इसका कुछ होना नहीं चाहिए, तुम्हारा है, साल भर तुम्हारा रहेगा ये. They learn like a real developer has to work. Most of them don't come from a technology background. कोई BA कर रहा है, कोई BCom कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, usually इस टाइप के बच्चे हैं. ऐसी फैमिलीज को पिकअप करा है जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम है. नो बाउंडेशन ऑन एनी कास्ट, रीजन, रिलीजन. कोशिश करा MP के बच्चों ताकि इंदौर में रहना उनको पॉसिबल हो. पेरेंट्स को सस्टेन करना है बच्चे को इंदौर में रखने का, उनको ये कॉस्ट बेयर करनी है. उनकी ट्रेनिंग 100% हम कॉस्ट बेयर करते हैं. कोई बुक कॉपी ड्रेस का उनको कोई खर्चा बेयर नहीं करना. स्टे के अलावा जो लंच होता है वो अपने कॉस्ट पे बेयर करते हैं. एंड देन एट द एंड ऑफ दैट ईयर वी ट्राई टू प्लेस ईच एंड एवरी स्टूडेंट. तो यहाँ पे नंबर छोटा है बट हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड 100% है. अभी इंदौर की ही कंपनी ने 40 बच्चों का एक साथ ग्रुप उठाया. कोशिश ये है कि इन्फोबीन्स फाउंड वापस उनको हायर ना करें, बिकॉज दैट इज द कैपेबिलिटी दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड. कि इन्फोबीन्स ट्रेन कर रहा है लेकिन इन्फोबीन्स हायर नहीं करता. इतने अच्छे हैं कि दीज स्टूडेंट्स शुड गेट अ जॉब बाय द एंटायर वर्ल्ड. अभी एक स्टूडेंट को दे गॉट प्लेस्ड इन अ US बेस्ड कंपनी. तो इट वाज लाइक एन अचीवमेंट फॉर द स्टूडेंट एंड फॉर द ट्रेनर देन फॉर अस. कि यार उस बच्चे को इतना ट्रेन करा जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, कि एक US कंपनी का उसने इंटरव्यू क्रैक करा, टेक्निकल इंटरव्यू, वर्बल इंटरव्यू क्रैक करा, HR से डिस्कशन करी एंड अपने लिए एक डिसेंट सैलरी ली. एक बच्चा जो कि खजरारा में उसका फैमिली होम है, बहुत ही छोटे घर में रहता है. ही इज बाइंग 3 BHK इन निपानिया विद हिज सैलरी. तो हमें लगता है कि वो अचीवमेंट है. एंड इफ वी आर एबल टू इंक्रीज दैट नंबर, आई थिंक नथिंग लाइक दैट, इट गिव्स अस पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम कि प्रोफेशनली मेरे टारगेट्स हैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट,
Government jobs are far and few. They are further decreasing. If you can, please upskill yourself. YouTube से अच्छा कोई टीचर नहीं है, बट डेडिकेशन आपको देनी पड़ेगी. आई नो यूट्यूब में क्या होता है, मेरे साथ भी होता है. आई स्टार्ट विद समथिंग एंड देन एंड अप समवेयर एल्स. बट इफ यू आर एबल टू डेडिकेट योर टाइम ऑन द राइट चैनल्स, आई थिंक यू कैन लर्न अ लॉट. जो मैंने स्टार्टअप के बारे में सीखा है, आई ऑब्वियसली कोई बुक नहीं आती है, अब शायद आने लग गई हैं, बट हाँ कोई बुक आती थी जब मैंने स्टार्ट किया था. बिजनेस जब स्टार्ट किया था, आई एम अगेन एन इंजीनियर. जो भी बिजनेस का पार्ट सीखा, सब कुछ नेट से सीखा है. स्टार्टअप के बारे में जो भी सीखा, लेट्स से फर्स्ट डे बोला कि यार एलएमसी पे काम कर लो. एलएमसी पे काम कर लो, एलएमसी होता क्या है, ये नहीं पता था. फिर लीन मॉडल कैनवस पता लगा, फिर पता लगा वो बीएमसी से आया है, फिर बीएमसी कहाँ से आया, वो सब कुछ पता लगा. एंड ऑब्वियसली थ्रू इंटरनेट मोस्टली एंड थ्रू सम गुड मेंटर्स व्हिच आई फाउंड ऑन द वे, समझ आया कि रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं एंड व्हाई आर दे यूजफुल. सो इंटरनेट इज द बेस्ट टीचर. यू फाइंड एवरीथिंग फॉर फ्री और एट अ वेरी लो कॉस्ट पॉसिबल इफ यू कैन डिवोट सम टाइम एंड देन रीच आउट टू पीपल. एक और चीज़ अच्छी हो गई स्टार्टअप कल्चर आने के बाद में, काफ़ी सीनियर इंडस्ट्री फोक्स प्लस स्टार्टअप फाउंडर्स आर इन द मोड ऑफ गिविंग बैक. गिविंग बैक इज ऑल्सो इन फैशन नाउ. आई एम गिविंग इट बैक फॉर फ्री, आई एम डूइंग दिस फॉर फ्री. इंदौर का एक हिमांशु हैं, मोशनजिलिटी के फाउंडर. ही स्टार्टेड अ अमेजिंग कम्युनिटी ऑफ जस्ट टू गिव बैक. डज नॉट चार्ज. हर वीक अपने ऑफिस में सबको फ्री कॉफी पिलाते हैं, अच्छा डिस्कशन करवाते हैं ऑन एनी रेलेवेंट टॉपिक. अगेन विद द थॉट कि कुछ इकोसिस्टम के लिए, कुछ कम्युनिटी के लिए करना है. जॉइन सम सच कम्युनिटी, नोबडी चार्जेस एनीथिंग देयर एंड यू फाइंड सच गुड पीपल. उस नेटवर्किंग से ही आपको या तो आपका स्टार्टअप चलने लगेगा या आपको कोई जॉब मिल जाएगी. ऐसा होता है कि एक बंदा कहता है यार मुझे एक अकाउंटेंट चाहिए, 10 लोग कहते हैं मुझे भी अकाउंटेंट चाहिए. That means every skill is under demand. You have to find whether you can get into that skill or not. In present and recent time, there is one digital India and digital world. Yes. And at the same time, the physical world is equally important. जो बिजनेस मॉडल्स हैं या जो बिजनेस जो बन रहे हैं आज की तारीख में, वहाँ पे 80 to 90% फोकस इज ऑन डिजिटल फॉर्मेट. कि हर कुछ डिजिटल में कर दो और डिजिटल ही आगे है, फ्यूचर है. फिजिकल के टाइप में वहाँ पे उतना कोई ध्यान नहीं है, या फिजिकल जो विजिबिलिटी है डिजिटल में वो विजिबिलिटी नहीं है. आप देख नहीं सकते हो कितना स्केल होगा, कैसे जाएगा. बट इन्वेस्टर का भी, वीसीज का भी डिजिटल में फोकस ज़्यादा होता है, बिकॉज उनको ऐसा दिखाया जाता है कि इसका रीच बहुत ज़्यादा है. फिजिकल में वो रीच पॉसिबल नहीं है, या उस रीच को पहुंचने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा. सो हाउ यू लुक एट बीइंग ए सीईओ ऑफ दृष्टि एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ आईआईटी, that what is your perspective in this, that physical and digital, इसका इक्वेशन कैसा होना चाहिए? ये जो फिजिकल डिजिटल का डिवाइड है, आई थिंक दिस इज डिक्रीजिंग एज वी प्रोसीड अहेड. एक एग्जांपल देता हूँ. पहले सिर्फ फ़ोन से हम पेटीएम वगैरह जो भी जीपे यूज़ करते थे वो होता था, एंड उसमें बहुत फ्रॉड होते थे. जब ये वॉइस बॉक्स आया कि इतने रुपये प्राप्त हुए, 100 रुपये प्राप्त हुए, आई थिंक ये उन लोगों के लिए जिनको फ़ोन ढंग से देखना नहीं आता या समझ नहीं आता और हु कैन ईजिली बी चीटेड, वो एक जो डिवाइड हो रहा था, जो इशू आ रहा था, जो फ्रॉड हो रहे थे, उसको कम करने के लिए ये वॉइस बॉक्स आया. तो बहुत सारे इंडिया स्पेसिफिक इनोवेशंस हैं जो कि होने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे और धीरे धीरे हो रहे हैं टू रिड्यूस दिस फिजिकल वर्ल्ड डिवाइड विद द डिजिटल वर्ल्ड डिवाइड. तो एक फिजिकल डब्बा रख दिया ताकि वो जो एक शॉपकीपर है, जहाँ पे हो सकता है कभी शॉपकीपर नहीं बैठे, उसकी मम्मी या पापा बैठे जिनको स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता, वो भी सुन के पता कर सकते कि हाँ इतने रुपए आए कि नहीं आए, एंड देन दे कैन हैंड ओवर द प्रोडक्ट टू द बायर. At IIT, I think multiple professors and students and some startups are building solutions which are very low cost, which are portable, which can be taken to the rural areas. जब इंडिया में इनिशियली ई-कॉमर्स और ये सब स्टार्ट हुआ था तो सब बोलते थे कि 100 करोड़ पॉपुलेशन है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं. आज पता लगता है कि करीबन 12 से 15 करोड़ पॉपुलेशन है जो कि रियल में ई-कॉमर्स से टारगेट करनी चाहिए और कर सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट है और जिनकी कैपेसिटी है टू यूज दैट सर्विस. बाकी पॉपुलेशन उससे बाहर है. तो नाउ पीपल आर कमिंग बैक टू द फिजिकल वर्ल्ड. जो लोग पहले सिर्फ डिजिटल में सेल करना चाहते थे, अब वो फिजिकल शॉप्स ओपन करने लग गए हैं. एक्सपीरियंस सेंटर बोलते हैं, भले उसको शॉप नहीं बोलते या स्टोर नहीं बोलते, बट नए नाम से आ रहे हैं. बट दे आर अगेन कमिंग बैक टू द रियल लाइफ, टू द फिजिकल लाइफ, क्योंकि इंडिया में आज भी टच, फील, सी, इंटरेक्ट वाला कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है. आई थिंक कहीं नहीं हुआ, इवन अमेरिका में नहीं हुआ. और जियोग्राफी भी हमारा इतना वास्ट है कि वो पेनिट्रेशन इतना पॉसिबल नहीं है कि हर लेवल पे आप पहुंच सके. प्लस जो शुरू में कुछ गलतियां हुई, फ्रॉड हुई, इस वजह से
जो ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा बहुत बिल्ड हो रहा था वापस वो रिड्यूस हो गया है टुवर्ड्स प्योर डिजिटल। तो फिजिकल टच पॉइंट्स वापस आने लग गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी प्लान किया था। आई थिंक बायजूस का सो फार जो कुछ ड्रॉपिंग हुई है, कुछ फेलियर पॉइंट्स आए हैं, दैट इज अगेन सिमिलर कि आप प्योर डिजिटल पे जा रहे थे, नहीं चला वो, दे केम टू फिजिकल, बट समझ आया कि फिजिकल की कॉस्टिंग बहुत हाई है, तो अगेन दे आर गोइंग बैक टू मिक्स ऑफ डिजिटल फिजिकल समथिंग लाइक दैट। इन्वेस्टर को डिजिटल हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि एज यू राइटली मेंशन, उसको इमीडिएटली बताना कि इसका स्केल बहुत फास्ट है, कि उबर अगर कोई सॉल्यूशन या कोई टेक्नोलॉजी कंपनी सॉल्यूशन इंदौर के लिए बनाएगी, वो इमीडिएटली मैप में पॉइंट्स डिसाइड कर उसको उज्जैन में भी इम्प्लीमेंट कर सकती है और भोपाल में भी कर सकती है और खरगोन जैसे एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकती है। लेकिन वही अगर मुझे फिजिकल प्रोडक्ट है तो मुझे पहले कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे जैसे PLI स्कीम के थ्रू इंप्रूव कर रही है, वैसे वैसे हमारा फिजिकल टच पॉइंट्स एंड फिजिकल प्रेजेंस हर चीज़ का बढ़ेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई सी एटलीस्ट अ डिकेड फॉर दिस टू रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर। प्लस जब इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे एक्चुअल मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे, जब हम चिप बनाएंगे, अभी वी आर जस्ट असेंबलिंग, है ना, चिप अगेन कम्स फ्रॉम ताइवान, चाइना, US एक्सेट्रा, वी आर असेंबलिंग एवरीथिंग। वंस वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग चिप, आई थिंक तब एक और अमेजिंग रिवॉल्यूशन आएगा इन इंडिया, जो हमने 20 साल पहले बस मिस कर दी थी, जो बस ताइवान में चली गई। ताइवान बीइंग अ वेरी स्मॉल कंट्री controls almost entire chip manufacturing capacity across the world. I think once we get into that, the bigger names are already into it. Tata चाह रहा है उसमें घुसना, Adani wants to get into it, Reliance wants to get into it. Some international companies are coming, doing JVs with Indian companies, they want to get into it. I think once that happens, it will take at least 3 to 5 years for those to come up. 3 से 5 साल तो मिनिमम लगेंगे वो बनने में, उसके अगले 5 साल उनको स्टेबल होने में और स्केल अप करने में लगेंगे। 10 साल बाद आई थिंक यू विल सी एन अमेजिंग डिफरेंट पिक्चर वेयर एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया and we are also now developing newer things. Already India इतना चिप डिजाइन करता था जितना कोई नहीं करता था. We have world's highest number of MTechs and VLSI चिप डिजाइन, बट हम डिजाइन करके भेज देते थे कि अभी अब तुम बना लो। अब हम डिजाइन भी करेंगे, बनाएंगे भी, तो आई एम वेरी होपफुल दैट परहैप्स द नेक्स्ट इंटेल और एनवीडिया विल कम आउट ऑफ इंडिया। अभी हमें US जाना पड़ता था, अमेजिंग जो लोग थे इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाते थे वो। सो ऑल द पिछाईज ऑफ इंडिया had to move out to US to take the next step. Now we are already seeing reverse migration. So many professors of IIT are coming back from good or amazing US and UK or other European universities. And I often ask them कि सर क्या ड्राइविंग फोर्स थी, क्या वापस आ गए? तो जैसे कि यार एक तो कंट्री के लिए कुछ करना था, आई फील वो सेकेंडरी पॉइंट है, वो पहले उसको बोलते हैं, बट प्राइमरी पॉइंट इज एज अ इंडियन वी आर स्टिल वेरी मच कनेक्टेड विद आवर फैमिली, राइट? सो उस वजह से स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों को नहीं सूट करता, एंड दे प्रेफर कि अगर इफ वी गेट अ रिलेटिवली गुड अपॉर्चुनिटी बैक इन इंडिया, वी वांट टू कम बैक टू इंडिया। सो ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। नाउ दैट TH हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, हम लोग टेक में काम कर रहे हैं। Almost every month I get a LinkedIn request from somebody sitting in the US कि मैं US में इतना amazing काम कर रहा हूँ, is an opportunity for me to come back to India and work with one of your startups. तो unfortunately मुझे बोलना पड़ता है कि यार मेरे स्टार्टअप अभी इतने बड़े नहीं हुए कि आपको अफोर्ड कर पाए, बट गिव मी अ ईयर और टू, आई थिंक सम ऑफ देम विल बिकम दैट बिग कि वो आपको अफोर्ड करेंगे कि आओ लेट्स बिल्ड समथिंग टुगेदर इन इंडिया। बट आई थिंक द नेक्स्ट डिकेड इज ऑफ इंडिया, एंड नॉट ओनली कि आज जो हमने काम कर लिया, क्योंकि हम लगातार उस एरिया में काम करे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट डिकेड के बाद भी नेक्स्ट डिकेड इंडिया का ही होने वाला है विद ऑल द वर्क दैट वी आर डूइंग। ऑल मैच्योर इकोनॉमीज आर मैच्योरिंग टू फास्ट, कुछ ज़्यादा जल्दी बूढ़ी हो रही हैं, एंड हम होपफुली अपनी अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जो यूथ है, उसको अच्छा रख पाए, पॉजिटिव रख पाए, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव रखना। तो वी हैव एन अमेजिंग टाइम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स। You have a technical background and you are associated and part of a IIT as well. Yes. एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि इन टुडेज टाइम वी आर इनटू द कंटेंट वर्ल्ड, और हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा कंटेंट बनाता भी है और हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा कंटेंट को कंज्यूम भी करता है। सो ये जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, इस कंटेंट को जब हम स्टोर करते हैं, वी आर स्टोरिंग इट टू द आउटर वर्ल्ड, टू द यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे ये डेटा स्टोर हो रहा है। वही डेटा हमको पैकेजिंग के थ्रू बाद में खरीदना पड़ता है। सो टेक्निकल वर्ल्ड में इतने डेवलपमेंट होने के बावजूद भी इंडिया में व्हाई देयर इज नो मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ डेटा कैप्चरिंग और डेटा वर्ल्ड? ओके, सो अगेन आई थिंक जो मेरा प्रीवियस आंसर था, कनेक्ट टू दैट। आपको डेटा स्टोर करना है तो आप अल्टीमेटली उसको इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में स्टोर करेंगे, यस राइट? यस। एज ऑफ नाउ
the manufacturing is concentrated in China and Taiwan, mostly, कुछ अमेरिका में होता है, and the ownership of such companies again lies either with Chinese, Taiwanese or US based companies. India has set up servers. इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया. दे हैव ह्यूज डेटा सेंटर्स, बहुत सारे प्राइवेट डेटा सेंटर्स भी इंडिया में आ चुके हैं. बट बिकॉज अगेन वी आर इम्पोर्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, हमारे डेटा सेंटर सेटअप एंड रनिंग की कॉस्ट बहुत हाई होती है. ओके. इसलिए इफ आई पुट एवरीथिंग इन इंडिया, माई स्टोरेज कॉस्ट विल बी वेरी हाई एंड इट इज नॉट कमर्शियली वाइबल. इसलिए हम लोग उनको डेटा फार्म्स जो होते हैं, विच आर बिगर डेटा सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वहाँ पे हम लोग उसको करने लगे हैं. I think MP गवर्नमेंट की रिसेंटली एक डेटा पॉलिसी आई है where they want to set up data centers in मध्य प्रदेश, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह will be given at a slightly subsidized cost. Second, data centers emit a lot of heat. They need good electricity supply and they need better climate or cool climate to make sure कि जो एयर कंडीशनिंग कॉस्ट है, जो कूलिंग कॉस्ट है, वो स्काई हाई ना चली जाए. मतलब मेंटेनेंस ऑफ द डेटा सेंटर विल बी ह्यूज इन आवर कंट्री. In our country because of the weather that we have. We are in tropical climate zone. Okay. And जहाँ पे tropical climate नहीं है, नॉर्दर्न इंडिया में अगर मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे the electricity is not amazing. We don't have 24/7 low cost electricity, and or the internet connectivity that I have is not as amazing as it should be. अगर मेरे को वहाँ पे at least 2 backups चाहिए होते हैं, एक मेन लाइन चाहिए होती है, only then do I operate a data center from that place. कि एक में कुछ खराबी हुई, दूसरे में हुई तो भी तीसरे से चलेगा, because I cannot cut off a data center. My customers will be out of reach if my data center is not accessible to them. Okay. So after cloud, the concept of cloud has come in, wherein you have distributed data, right? तो मेरा एक डेटा मल्टीपल जगह होता है, so that whichever user tries to reach, उसको सबसे जो nearest data center वहाँ से connect करके डेटा दिया जाता है, so that the data comes at a much faster pace, and because it is coming at a faster pace, the cost of delivering data is low. तो इंडिया में भी मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैव बीन सेटअप. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया स्पेसिफिकली एंड कुछ बैंकिंग और फाइनेंशियल फिनटेक्स को बोला है that you cannot store data out of India. So they have set up data centers in India. But yes, when I talk about YouTube and such public entities which have huge amount of data, most of the data still goes out of India, and we again have to get it back through internet to consume it back in India. It will take some time. Once manufacturing starts, I'm very sure that the cost of data centers and establishing it will come down. There are other innovations. For example, Microsoft decided and tried and tested and got successful in setting up a data center under the sea. वाटर करंट अपने आप आता रहता था, उससे कूलिंग होती रहती थी. आई डोंट हैव टू यूज ह्यूज एसीज टू मेंटेन दोस डेटा सेंटर्स. एंड देन सोलर एनर्जी इज गेटिंग चीपर डे बाय डे. तो वहाँ भी अगर इफ आई हैव टू रन एसीज एक्सेट्रा, माय डेटा सेंटर कॉस्ट्स कम डाउन. ये एक स्लाइटली डिफरेंट एग्जांपल, यू मे कट इट लेटर. आई वाज एट नासिक एट सूला विनयार्ड्स. तो जितनी वाइन पुरानी होती है उतनी महंगी बिकती है, राइट? सो यू हैव 100 of years old wine in Europe that is sold across the world. Yes, true. So we asked the Sula Vineyard folks कि आपकी वाइन सबसे पुरानी कितनी होती है? So they said कि सर 18 महीने से ज़्यादा पुरानी वाइन हम नहीं रखते सेलर में. It is bottled and then sold. I said कि पुरानी क्यों नहीं कर रहे, महंगी बेचना. I said सर आप कहाँ खड़े हो? We were in their cellar. तो हमने कहा सर आपके सेलर में. तो बोला सर क्या टेम्परेचर है? We noticed it was around I think 7 degrees or 4 degrees. बोला सर कैसे आ रहा है? हमने कहा इसी चल रहा है. बोला सर इस वजह से. यूरोप में ऑलरेडी टेम्परेचर स्टेज लो, अंडरग्राउंड बनाते हैं. Naturally, just by making sure that air keeps on flowing, they're able to maintain very low temperatures. So उनको उस वाइन को पुराना करने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आ रही. यहाँ पे आपको उस वाइन को रखने में 60 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत ह्यूज कॉस्ट आ रही है. Exactly same story goes for data centers. Okay. तो वाइन एंड डेटा सेंटर एक है. Sorry. Now in India, in terms of PMOs, there is a lot of focus on manufacturing in India. Yes. At the same time, India जो डायनामिक्स हमारे पास है या जो स्किल हमारे पास है इन IT एंड अदर सेक्टर्स, वहाँ पे सर्विस सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हमने पहले देखे हैं TCS, इन्फोसिस, ये सारे कंपनी कितने बाहर का काम करते हैं. तो दे आर इनटू द सर्विस सेक्टर. फोकस इज ऑन मार्केटिंग एंड फोकस इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग. अभी मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूँ, हो सकता है इररिलेवेंट हो, हम चाइना के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं हर चीज़ में. अगर हम चाइना की सिर्फ एक सेक्टर की बात करें, विच इज़ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, चाइना की इंडिजिनस अराउंड 22 व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो चाइना में अपना गाड़ियां बेचते हैं. हिंदुस्तान में अगर खुद के देखें तो वी हैव ओनली टाटा एंड महिंद्रा, दैट इज द हिंदुस्तानी कंपनी. मारुति इज हैविंग ओनली कोलैबोरेशन और बाकी सारे कंपनी तो बाहर से ही आए हैं. सो वी आर ओनली 2 कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स.
While we are competing with China, they are having 22 car manufacturing unit. Number one, presently there is a focus of electronic vehicle manufacturing. China has started making their electric vehicle 10 years back. So 10 साल उनका जो एक्सपीरियंस है या 10 साल उनका जो भी रिसर्च हुआ है वो हमसे काफी आगे जाएंगे, क्योंकि उनके पास डेटा है 10 साल का, क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे में चाइना के साथ कंपटीशन करना मैन्युफैक्चरिंग में कितना वायबल आप समझते हैं या कितना लॉजिकल है? मैन्युफैक्चरिंग ज़रूरी है इस वजह से कि नॉट एवरीबडी कैन बी पार्ट ऑफ अ वाइट कॉलर जॉब। यस, राइट। इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि लिव्स स्लाइटली अबव द पॉवर्टी लाइन, राइट, जिसको हम लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, फिर लोअर मिडिल क्लास अगर और भी कोई वर्ड नहीं मिले तो। और उन लोगों को जॉब देने के लिए यू नीड मैसिव नंबर ऑफ जॉब्स फॉर विच मैन्युफैक्चरिंग इज वन बिग सेक्टर। सर्विस सेक्टर भी देता है, मैन्युफैक्चरिंग में ये है, इट इज़ अ स्टेबल क्वालिटी जॉब and it lasts for a long time because manufacturing units usually last for an entire generation or a lifetime of a person. इसलिए मैन्युफैक्चर करना ज़रूरी है। चाइना से हम काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी पीछे हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा बॉर्डर रोड या बॉर्डर इंफ्रा है, बहुत साल तक आई बीन मेनी प्लेसेस था ही नहीं, आई न्यू हम कैसे गए थे, पहुँचे थे, एंड नाउ गवर्नमेंट इज़ इम्प्रूविंग अपॉन इट। जस्ट बिकॉज हम पीछे हैं इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको कैच करने की कोशिश ना करें, या फिर मैं ऐसा कहता हूँ कि हम कैच नहीं कर रहे बट वी आर ट्राइंग टू ट्रेड आवर ओन पाथ। हम दोनों के पाथ सेम है बट दे आर एट अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी एज यू राइटली मेंशन। हम उनको कैच मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर पाएंगे। चाइना इतना इंसेंटिव देता है अपने इंटरनल मैन्युफैक्चरर्स को जितना इंडिया नहीं देता। उसकी वजह शायद एक ये है कि वो एक दे आर ऑलमोस्ट ऑटोक्रेसी रूल्ड बाय वन पार्टी, वन पर्सन सेलेक्टेड ऑफ वन आफ्टर द अदर, एंड वी आर अ डेमोक्रेसी। सो उनकी जो पॉलिसीज हैं दे कैन कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो 30 साल का प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आर प्लान्स डोंट गो बियॉन्ड 5 years इफ द गवर्नमेंट चेंजेस। वी हैव, पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग है। सो वी हैव पॉलिसीज इन प्लेस फॉर नेक्स्ट 30, 40, 50 years, almost sometimes even 100 years. But are they implemented at that point of time if the government changes? That is a big question mark. So this is one big reason why we are not able to perhaps catch up or reach that level. Slightly controversial answer perhaps, but that is my personal view, not related to my profession. Secondly, जो EV वगैरह की टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं या किसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, one good thing is that because of globalization, any work that China does or US does, because of all the companies which are also working in India at the same time, we get access to almost anything with a very short lag. तो चाइना के 10 साल का डेटा है, वो 10 साल की लर्निंग से और इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो 10 साल का डेटा मुझे 6 महीने के डिले के साथ में यहाँ पे मिल रहा है। सो अब मैं उनसे 10 साल पीछे नहीं हूँ, मैं उनसे सिर्फ 6 महीने पीछे हूँ। ओके, इन मोस्ट केसेस। कई जगह जहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, वहाँ पे हो सकता है मैं ज़्यादा पीछे हूँ। दूसरा, विद रिवर्स माइग्रेशन विच इज हैपनिंग नाउ एट अ रैपिड पेस, people who did good research in US are going back to China and developing things there. People who did good research in US and are Indians are coming back to India to set up things there. I have a founder who has worked in Ford battery technology for 20 years. He's a PhD from US. He has come back to India and started his own battery research and manufacturing company. सिर्फ बैटरी बनाएगा, वो पूरा EV कुछ नहीं बनाएगा। आई एम वेरी श्योर कि जो उसकी लर्निंग है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सपोर्ट करेगी। प्लस बाय नेचर वी आर इंजीनियस, हम तिकड़मी हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत हाई कॉस्ट दे के US करता है या कर चुका है, हम वो सेम चीज़ एट अ मच लो कॉस्ट एट अ मच फास्टर पेस कर पाते हैं और कर पाएंगे। बिगेस्ट एग्जांपल बीइंग इसरो एंड नासा। वो जिस कॉस्ट पे करते हैं और हम जिस कॉस्ट पे करते हैं, दिन रात का अंतर है, बट वी आर एबल टू परहैप्स डू बेटर देन देम एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। प्रेजेंटली वी आर इन द ऑरा, और प्रेजेंटली वी आर इन द एरा जहाँ पे AI एक कॉमन टर्मिनोलॉजी हो गया है हर चीज़ में। किसी जगह पे ये बोला जाता है कि AI के वजह से जॉब चली जाएगी, पीपल विल लूज द जॉब। किसी वजह से AI इज द ओनली अपॉर्चुनिटी दैट पीपल सी इन ऑल सेक्टर्स एंड ऑल सेगमेंट्स। इस AI को आप अपने सेक्टर में कैसे देखते हैं कि हाउ मच इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड? बिकॉज AI इज अ मशीन बेसिकली, सो मशीन को कोई ह्यूमन ही ऑपरेट कर सकते हैं। सो ये डर तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि जॉब चली जाएगी या इंसान का कोई रोल ही नहीं रहेगा। What is your perspective in coming AI into that aspect and in that prospect in your sector? तो जॉब तो जाएगी जा रही है ऑलरेडी बहुत सारी सेक्टर्स में।
जैसे कंटेंट राइटिंग एक्सेट्रा और इवन कोडिंग में द नंबर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन हैज बीन इम्प्रूव्ड। इसलिए 10 लोगों की जगह हो सकता है 8 लोगों की जरूरत ही पड़े, लेकिन वो 2 लोग एकदम बेकार हो गए, आउट ऑफ जॉब हो गए, ऐसा नहीं है। व्हेन आई एम बिल्डिंग मॉडल्स ऑन AI ML एनी ऑफ दैट, मुझे डेटा आता है, मुझे उस डेटा को ट्रेन करना पड़ता है, राइट। अगर मैं इस रूम का एक फोटो दूं और मुझे अल्टीमेटली कैमरा से पहचानना है कि इस रूम में कितने कैमराज हैं, तो पहले कोई ह्यूमन बैठ के टिक मार्क करेगा कि 2 कैमरे हैं, फिर दूसरा ह्यूमन वो चेक करेगा कि पहले ह्यूमन ने सही लिखा कि नहीं लिखा, राइट। सो अब जो डेटा के हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं, डेटा की जो मार्किंग करते हैं, अब मुझे उसमें एक आर्मी चाहिए, क्योंकि AI उतना अच्छा होता है जितना अच्छा उसके मॉडल बनाया जाता है, मॉडल उतना अच्छा होता है जितना अच्छा उसको डेटा फीड किया जाता है। तो डेटा को ट्रेन करने के लिए हमें अगेन ह्यूमंस चाहिए। तो अब जो ह्यूमन पहले कॉल सेंटर में बोल रहा था हाउ मे हेल्प यू, अब उसकी जगह बैठकर वो कंप्यूटर पे ही मॉडल्स को ट्रेन करने में हेल्प कर रहा है और चेक कर रहा है कि वेदर द ट्रेन मॉडल्स आर ऑप्टिमली परफॉर्मिंग और नॉट। यानी अब उस व्यक्ति को सेम स्किल में जॉब शायद नहीं मिलेगी, दैट पर्सन नीड्स टू बी रीस्किल्ड और अपस्किल्ड टू हैव जॉब इन द AI एरा। ये काफी फर्क पड़ा है फिलीपींस में भी, बिकॉज यहाँ से सारे कॉल सेंटर जॉब फिलीपीन चली गई थी जब इंडिया महंगा हुआ। वहां पे अब काफी लोग AI ट्रेनर्स बन गए हैं और AI मॉडलिंग ट्रेनर्स बन गए हैं, डेटा ट्रेनर्स बन गए हैं फ्रॉम दी हार्डकोर कॉल सेंटर जॉब दैट दे वर डूइंग, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम टाइप का व्यक्ति चाहिए मुझे। बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में आई डोंट सी टू मेनी जॉब्स गोइंग, इट विल रादर हेल्प improve the quality of manufacturing, reduce the time in certain cases. Healthcare में जो amazing impact AI का आने वाला है, I think everybody should be thankful for that. India में कितने डॉक्टर्स हैं, कितने पेशेंट हैं, everybody knows the amount of, for most of us who are well off, due to God's grace, we can reach out to a private clinic at any point of time. हम अपना रेडियोलॉजी डेटा चेक करवा सकते हैं, वहाँ रेडियोलॉजिस्ट चेक करके आपको डेटा रिपोर्ट देगा। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर विल स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद अस, सी द रिपोर्ट्स, गिव अस द आउटकम और व्हाटएवर द क्लिनिकल डिसीजन इज। कंपेयर दैट टू पर्सन लिविंग इन अ रूरल एरिया, जिसको एक लाइन में लगकर रिपोर्ट करवानी पड़ती है। डॉक्टर्स irrespective of their choice, they don't have the time to give spend a lot of time for every X-ray, every CT, etc. And due to lack of time, the decision may not be correct or optimum. वहाँ पे AI with the help of all the previous data that is available, हम ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं दिल्ली के साथ में, भोपाल के साथ में भी स्टार्ट करा है, रायपुर इज इंटरेस्टेड, वी आर नाउ। ये मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज हिंदुस्तान में जिस तरीके का पेशेंट है या जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है, तो डेटा कैप्चरिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जितने आपको वेरिएबल्स मिलेंगे उतना ज्यादा AI आपका परफेक्टली काम कर पाएगा। सो हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा घर है इसके लिए। सो मेडिकल में तो इंडिया कैन डू वंडर्स इन टर्म्स ऑफ AI डेफिनेटली। तो इसीलिए लेकिन एक चैज़म, एक डिफरेंस यहाँ था, अभी भी है, कि सब जगह जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने जो बेस्ट होते हैं, दे ट्राई टू वर्क इन देयर साइलोज, वो अपने ही एरिया में काम करना चाहते हैं। अगर नाउ आई वांट पीपल टू वर्क इन अ इंटरडिसिप्लिनरी फैशन, इसीलिए पूरा जो हमारा प्रोग्राम NMIC पे उसका डेवलपमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से। इंटरडिसिप्लिनरी इज द कीवर्ड हियर। इंजीनियर को, टेक्नोलॉजी वाले पर्सन को मेडिकल के साथ में काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक्सरे देख के कुछ समझ नहीं आने वाला, और उन्हें मेरा पाइथन का लिखा हुआ कोड, डॉक्टर को मेरा पाइथन का लिखा हुआ कोड समझ नहीं आने वाला। वी विल हैव टू वर्क टुगेदर वेयर इन दे गिव डेटा, वी बिल्ड मॉडल्स एंड दे वैलिडेट द मॉडल्स। क्लिनिकली जब तक वैलिडेट नहीं होगा तब तक मैं उसको रियल लाइफ में यूज नहीं कर पाऊंगा। यू मीन टू से कि एक फिजिकल भी आपको बताएंगे कि फिजिकल देख के कि दिस इज द इम्पैक्ट, और जो मशीन जो बता रहा है उसके साथ एक स्टैंडर्डाइजेशन करें कि मशीन कितना परफेक्टली वो बात कर पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर जोमेटो का एग्जांपल लूं, तो आप जोमेटो से 10 बार कोई चीज मंगाते हैं अलग अलग रेस्टोरेंट से, एंड यू कीप गिविंग देम रेटिंग। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, वेयरएवर यू बाय स्टफ फ्रॉम, आपको पता होगा कि यार इस चीज के रिव्यूज ज्यादा अच्छे हैं, यानी ये बेटर है। उसी तरह मैंने 4 मॉडल बनाए प्रेडिक्ट करने के लिए कि इस एक्सरे में हड्डी टूटी है कि नहीं है। डॉक्टर ने कहा यस, पहले मॉडल ने कहा नो, अगले ने कहा नो, अगले ने कहा यस, अगले ने कहा नो। यस दोनों सही हो गए, डॉक्टर की बात यहाँ हो गई, यानी द थर्ड मॉडल वाज करेक्ट। इसी तरह बार बार मैं डॉक्टर के डिसीजन से अपने मॉडल को चेक करता रहता हूँ। अल्टीमेटली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई विल अंडरस्टैंड कि मेरा फर्स्ट मॉडल बेस्ट है, कि मेरा सेकंड, की थर्ड, की फोर्थ, उस मॉडल को फिर मैं रियल लाइफ में प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करूंगा। जितना ज़्यादा डेटा डॉक्टर मेरे को कोरिलेट कर पाएंगे क्लिनिकली, उतना बेटर मेरा मॉडल हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक कहता है इंडिया डज नॉट हैव द मनी टू पे आउट ऑफ इट्स वे आउट ऑफ द हेल्थ केयर क्राइसिस दैट वी हैव।
Yes. तो हमें टेक्नोलॉजी ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना पैसा हम झोंक ही नहीं सकते. जीडीपी डज नॉट हैव द स्कोप, वी डोंट हैव द स्कोप कि हम जीडीपी से बहुत बड़ा परसेंटेज उठा के मेडिकल में डाल पाए. हमारा चाइना से रिश्ते अच्छे होते, बांग्लादेश सही होता, पाकिस्तान अच्छा होता, श्रीलंका शांत रहता, नेपाल अच्छा रहता, टेररिज्म नहीं होता, तो हम बहुत सारा पैसा फ्रॉम डिफेंस डाल पाते इनटू हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा. अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन इज नॉट आइडियल, रियल लाइफ में हम रह रहे हैं. सो द आई थिंक वी आर पुटिंग अराउंड 2 to 3% ऑफ आवर जीडीपी इनटू हेल्थ केयर. Yes. हम बहुत ज़्यादा उसको नहीं बढ़ा पाएंगे. टेक्नोलॉजी से ही उसमें हम इम्प्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं. Now, being as a CEO of Drishti and being a part of IIT, आपके हिसाब से आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव में व्हाट आर द सेक्टर्स व्हिच आर फ्यूचरिस्टिक, जिसमें एंटरप्रेन्योर को काम करना चाहिए और ज़्यादा स्कोप आपको नजर आता है आपके नज़रिए से? मैं डोमेन का कुछ नाम लेता हूँ. आई थिंक हम तीनों उसी सेक्टर में हम भी उसी सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहे हैं. पहला सेक्टर इज हेल्थ केयर. कोविड ने ये प्रूव कर दिया कि पूरा वर्ल्ड हेल्थ केयर क्राइसिस के लिए रेडी नहीं है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. यस, ट्रू, वेरी ट्रू. डेवलप्ड नेशंस ने भी सफर करा, हमने भी सफर करा. यस. सो एक तो हेल्थ केयर है, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर इनोवेशन. छोटे छोटे इनोवेशन भी बहुत कुछ इम्पैक्ट दे सकते हैं. तो हेल्थ केयर इज द फर्स्ट एट अ रैंक अप देयर. इट इज़ एज डिफिकल्ट. कुछ भी बनाने और बेचने में मिनिमम 3 to 5 ईयर का टाइम लगता है. सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं, लाइसेंसिंग लेने पड़ते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट बट येस, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. सेकेंड, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव, मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप कुछ अच्छा कर पाएं, वेर इन यू आर एबल टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी, गिव सपोर्ट टू द MSMEs. इंडिया में प्राइमरी जॉब क्रिएटर आर दी MSMEs, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. उसमें भी माइक्रो और स्मॉल 99% हमारे जॉब्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि उतने ही वो एग्जिस्ट करते हैं. एवरी स्मॉल यूनिट जो है वहाँ पे 5-10 लोग तो मिनिमम काम कर ही रहे होते हैं. स्टार्टअप में 3 लोग कर रहे होते हैं, MSME में ज़्यादा कर रहे होते हैं, राइट. तो इसलिए गवर्नमेंट का फोकस है MSME पे एंड गवर्नमेंट का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग पे अगले एक डिकेड के लिए. तो आई वुड सजेस्ट इफ यू कैन वर्क समथिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, आप टेक्नोलॉजी से उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उनको और एफिशिएंट बना सकते हो. गवर्नमेंट की स्कीम में ZED, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हो. नथिंग लाइक इट. पीपल आर रेडी टू पे एट अ डिसेंट प्राइस फॉर अ गुड टेक्नोलॉजी, गुड सपोर्ट इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड देम. आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करा सकते हो किसी को. आई थिंक नथिंग लाइक इट. थर्ड सेक्टर बहुत ब्रॉड सेक्टर है, विच इज द सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी में सबसे पहले मैं एग्री लेके आता हूँ. एग्री में बिकॉज वी आर अल्टीमेटली एग्री बेस्ड इकोनॉमी, एग्री बेस्ड नेशन. अभी भी काफ़ी लोग रूरल एरिया में इकोनॉमी एग्री से कनेक्टेड हैं. बट उसमें मेरे को एक प्रॉब्लम दिखती है कि बहुत सारे एग्री स्टार्टअप्स है, बहुत सारे एग्रीप्रेन्योर्स हैं, लेकिन हार्डकोर फार्मर की स्थिति आज भी सुधरी नहीं है. वो आज भी बुरी हालत में ही जी रहा है, मोस्ट केसेस में सुसाइड कर रहा है. अपॉर्चुनिटी बहुत है. आई रियली डोंट, इवन सिटिंग एट दिस पोजीशन, आई रियली डोंट हैव एन आंसर कि किस तरह हम रियल में उसकी सपोर्ट कर सकते हैं. क्योंकि आज आई हैव 2 मैंगो ट्रीज एट माई हाउस. एक दिन आंधी आती है तो सब कुछ नीचे गिर जाता है. मैं उनको बेचूंगा नहीं तो मुझे वो चुभता नहीं है, लेकिन मुझे बुरा लगता है कि यार मेरे तो 2 पेड़ हैं. जिस फार्मर ने 500 पेड़ लगाए होंगे इस आशा में कि बिकेगा तो बहुत कुछ आएगा, उसका पेड़ ऐसे नीचे सब गिर जाते हैं फल, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा. बट आई डोंट हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट. लेकिन अगर किसी के पास में रियल में सॉल्यूशन है जो कि एग्री में कुछ कर सके, तो इंडिया इज़ अ क्रेजी कंट्री फॉर दैट. गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करेगी आपको. कलेक्टर लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है एग्री में, अगर आप कुछ रियल में कर पाएँ, डिपिक्ट कर पाएँ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन. सेकंड, वाटर और एनवायरनमेंट में अगर आप कुछ कर पाएँ, क्लीन एनर्जी उसका पार्ट आ जाता है. सोलर में बहुत इनोवेशंस हुए, अच्छी छोटे छोटे इनोवेशंस, IoT प्रोडक्ट्स बहुत चल रहे हैं क्योंकि सोलर बहुत ज़्यादा चल रहा है. आई थिंक सम ऑफ इंदौर बेस्ड कंपनीज, जैसे कुछ पंप कंपनीज हैं, दे हैव डन वंडरफुली वेल. MSME से वो लार्ज कंपनीज बन गई हैं, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो गई हैं, ओनली बिकॉज ऑफ एनर्जी सोलर में, क्योंकि उनको काम मिला है. I won't pick up names, but I think everybody knows इंदौर में कौन सी अच्छी कंपनी है. तो if people can work in those areas, I think opportunity बहुत है अगले एक पूरे decade के लिए. तो these are the 3 areas: sustainability, health, and manufacturing, which I want to pick up for India as an economy. Only app-based solutions, I'm not very sure कि कितना अब चलेंगे. उनमें कुछ physical component होना चाहिए. People again want back that feel, touch, real life scenarios than just pure digital life scenarios. Being heading this Drishti unit till time, ये बोलना बहुत ही वेग होगा मेरे लिए, बट स्टिल आई वांट टू आस्क यू, आपके हिसाब से आपने क्या सक्सेस स्टोरीज बिल्ड किए हैं और आप किस दिशा में और आगे काम करना चाहते हैं? मैं तीनों एरिया में उठाता हूँ जो हम काम करते हैं. स्किलिंग में आई थिंक
हम जो एक मॉडल पे आ पाए हैं विच इज़ CSR सपोर्टेड मॉडल, मोस्टली पैसा चाहिए होता है स्किलिंग में अल्टीमेटली, लेकिन wherein we are able to cater to a small audience but making sure that they are gainfully employed and they are well skilled. I think that is the biggest achievement that we've been able to do. अब हम उस मॉडल को एक्सपैंड करना चाहते हैं. वी आर रीचिंग आउट टू मल्टीपल कॉर्पोरेट्स कि डोंट जस्ट गो एंड बिल्ड अ बिल्डिंग फॉर XYZ. वो भी ज़रूरी है, बट आप सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग मत बनाइए, आप उसको चलाने में मदद कीजिए. बिकॉज अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन गिव टू योर एम्प्लॉयज टू बी वॉलंटियरिंग रिसोर्सेज एक्सेट्रा, उससे बहुत कुछ बेनिफिट हो जाएगा. तो हम वो ह्यूमन इम्पैक्ट लाना चाह रहे हैं इनटू CSR टू अपस्किल एंड रीस्किल पीपल एंड मेक देम एम्प्लॉयबल. तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना प्राइवेट सेक्टर में, नॉट गवर्नमेंट सेक्टर, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स फ्रॉम बोथ ऑन अ पर्सनल लेवल एंड ऑन अ इंस्टीट्यूशनल लेवल. सेकेंड, जिसके लिए हमें कोर बनाया गया था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन, उसमें वी आर करंटली सपोर्टिंग 71 टेक्नोलॉजीज. हमने 71 टेक्नोलॉजीज को फंड करा है फॉर डेवलपमेंट. उसमें से 6 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जहाँ पर फैकल्टी एंड 4 ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पे स्टूडेंट हैव स्टार्टेड देयर ओन स्टार्टअप. तो 71 में से 10 में तो आई वाज एबल टू गेट द इनोवेटर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. यानी अब वो सिर्फ जॉब नहीं कर रहे, अब वो जॉब क्रिएटर भी बन गए हैं और टेक्नोलॉजी भी मार्केट में ले आए हैं. मुझे बड़ा मजा आता है वो उनको देखकर. वो बाकी लोगों को भी इंस्पायर करते हैं एंड ऑब्वियसली मुझे खुद पर्सनल लेवल पे एक अचीवमेंट फील होता है. सेकंड, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हार्डकोर इनोवेटर्स हैं जिनको एंटरप्रेन्योर नहीं बनना, सबको बनने की जरूरत भी नहीं, वो ज़्यादा एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे मार्केट में. वो अपनी टेक्नोलॉजी हमें दे रहे हैं, हम उसको मार्केट में लेके जा पा रहे हैं. जो एकेडमिक से टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं जा पा रही थी और एक रिसर्च पेपर में बंद हो रही थी, हम उसको मार्केट में ले जा पा रहे हैं. दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट. एंड जब मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मेरे प्रोफेसर डायरेक्टर IIT इंदौर वगैरह में बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भी तुम ले जा सकते हो क्या, एंड वी आर नाउ कॉन्फिडेंट कि हाँ, अब इतने कॉन्टैक्ट्स बन गए दैट वी कैन एक्चुअली पुट टेक्नोलॉजीज आउट इन द मार्केट एंड दे विल बी एक्सेप्टेड कि हाँ, दृष्टि से आई है, वैलिडेटेड है, इतना ट्रस्ट है. तो इट इज़ द सेकंड अचीवमेंट. थर्ड, स्टार्टअप्स में 46 स्टार्टअप्स में से करीबन 10 स्टार्टअप ऐसे हैं. यूजली स्टार्टअप में रेशियो रहता है 1 स्टार्टअप पेज आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स दैट यू इन्वेस्ट इन. बाकी 9 स्टार्टअप पे बैक नहीं कर पाते या बहुत कम पे बैक कर पाते हैं. अभी स्थिति ये है 46 में से आई एम एक्सपेक्टिंग कि 10 स्टार्टअप्स विल पे मी बैक. इंडस्ट्री से बहुत गुना अच्छे हैं हम इस मामले में. पे बैक मीन्स ये स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं, दे आर गेनिंग इन वैल्यूएशन, एंड हमारा फोकस ये रहता है कि मेरे जितने भी स्टार्टअप्स हैं विद इन 2 years दे शुड बिकम कैश पॉजिटिव, ब्रेक इवन कर लेना चाहिए उन्हें. इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, इसलिए फुल प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते बैलेंस शीट लेवल पर, कैरिड लॉसेज रहते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर साल के लिए दे बिकम कैश पॉजिटिव, यानी उन्होंने इतना अर्न करा कि उनके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा वो अर्न कर पाए. दे आर एबल टू पे सम टैक्स, इनिशियल टैक्स कुछ वो अपना पे कर पा रहे हैं. वी वांट स्टार्टअप्स टू रीच दैट लेवल विद इन 2 years. तो वैसे मैं मानता हूँ कि 46 में से करीबन 20 स्टार्टअप्स उस लेवल पे आ चुके हैं विद अ ईयर ऑफ सपोर्ट, 1 साल के सपोर्ट में, विच इज़ अ प्रेटी गुड नंबर. ये रेशियो खराब होगा जब हम ज़्यादा नंबर से डील करेंगे, बट आई थिंक टू स्टार्ट विद दीज आर सम गुड थिंग्स ऑफ विच आई एम प्राउड कि मैं 2 साल में, अक्टूबर में मुझे 2 साल हो जाएंगे कि मैं 2 साल में इतना कुछ कर पाया, स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी इनिशियल लेवल एंड सिटिंग इन अ Tier 2 सिटी विच इज़ अ सिटी ऑफ ट्रेडर्स. तो इंदौर का हार्डकोर स्टार्टअप कल्चर नहीं है. हम लोग सर्विस इंडस्ट्री काफ़ी करते हैं इंदौर में, मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी है, लेकिन जो टेक स्टार्टअप जिसको मैं प्रमोट करता हूँ एट IIT इंदौर, उसका कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं था. तो हम लोग कल्चर कुछ बिल्ड कर पाए, कुछ स्टार्टअप को सपोर्ट कर पाए. आई थिंक फॉर अ स्टार्ट इट इज़ अ गुड स्टार्ट. ऑब्वियसली आई एम नॉट हैप्पी कि हम बहुत कुछ और कर सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं रियल लाइफ के, कि आपकी इच्छा होती है कि 3 दिन में ये हो जाए, उस काम को 3 महीने लग जाते हैं. तो यू स्टे हैप्पी विद व्हाट यू हैव अचीव्ड, बट एट द सेम टाइम यू स्टे हंग्री कि मुझे और बहुत कुछ अचीव करना है. What is your futuristic plan for next 2-3 years down the line? Futuristic plan, I think step 1 एक फंड इंदौर से क्रिएट करना है. स्टार्टअप फंड. इंदौर में देयर आर फ्यू एंटिटीज विच फंड स्टार्टअप्स, बट दे यूजली सिंडिकेट, यानी एक डील लाएंगे एंड देन दे विल रीच आउट टू इन्वेस्टर्स कि आपको इन्वेस्ट करना है क्या, एंड देन इन्वेस्टर में चूज टू इन्वेस्ट और नॉट. वी वांट टू हैव एक्स अमाउंट, लेट्स अराउंड 100 crore इज व्हाट वी आर राइट नाउ थिंकिंग, कि 100 crore रुपए मेरे बैंक में होने चाहिए. It's a VC kind of a fund that yes, you want to a VC create. fund that we want to create out of Indore. Okay. MP में आज तक
फंड नहीं क्रिएट हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने प्लान किया था एमपीवीएफसी के थ्रू, बट वो ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाया. We will now again reach out to the government also to see if they want to support in this Because initiative. in recent past there are a lot of VCs who invest majorly into the first level seed level. सर ये सब एंजल है, वीसी कोई भी नहीं है. Okay. जो वीसी है वो एमपी का कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है. मोस्टली बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली रजिस्टर्ड है जो यहाँ की इन्वेस्ट Yes, कर रहे I'm talking about Yes. Peak 15 and those other companies Yes, who yes, already yes. because they are creating corpus like 350 crore or something, and Sir, out of which they have 200 invested 2000 crore. 46 companies. 2000 करोड़ का कॉर्पस लेके आ रहे हैं वीसी. Yes, उस लेवल पे yes. इंडिया में आ रहे हैं. बट इफ वी स्टार्ट समथिंग फ्रॉम एमपी, आई थिंक यहाँ के जो एंजल इन्वेस्टर हैं प्लस यहाँ के जो फाउंडर्स हैं, they'll get a huge क्या confidence आपको नहीं boost. लगता है पर्सनली कि एंजल इन्वेस्टर और एंजल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट खतरनाक है स्टार्टअप के लिए? नहीं. इफ दे कैन ऐड वैल्यू अपार्ट फ्रॉम मनी, बहुत अमेजिंग चीज है. Okay. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पेप्सिको में आई वर्क इन पेप्सिको एंड आई इन्वेस्ट इन ए कंपनी विच इज इन्वॉल्व इन टू सप्लाई चेन और इन्वॉल्व इन टू एफएमसीजी. मेरी लर्निंग जो पेप्सिको की है या सिमिलर कंपनी की है, वो स्टार्टअप को कितना काम आ सकती हैं. सो एंजल इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज वेयर अपार्ट फ्रॉम मनी दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो. या तो वो प्रोडक्ट इंप्रूव करा सके Expertise या दे वो सके अपने. एक्सपर्टीज दे सके, कस्टमर ला सके, तो मजा आता है. आप सिर्फ पैसे देके हट गए और बोला कि यार मेरे को रिटर्न मिल जाए, तो वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है दोनों के लिए. दोनों में से कौन सा बेटर है? वीसी फंड इज मोर फिजिबल और एंजल इन्वेस्टर्स फंड इज मोर? अर्ली पे तो एंजल ही मिलेगा सर. वीसी, माइक्रो वीसी अब आ जाते हैं 1 मिलियन पे 8 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन यूजुअली वीसी फंड इज बियॉन्ड 1 मिलियन, मतलब 2, 4, 5, 10 मिलियन डॉलर चाहिए तब वीसी फंड आता है. एंड बियॉन्ड दैट, उससे पहले तो एंजल या ग्रुप ऑफ एंजल्स ही आते हैं. मोस्ट कंपनीज, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस बहुत बड़ा नहीं होता यूजुअली, तो हमें चाहिए होता है 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए. वहाँ पे एंजल ही आता है, वहाँ वीसी आपको टच नहीं करेगा, क्योंकि उनको बड़ी गेम खेलनी है, वो बड़ा रिस्क लेते हैं एंड बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं. एंजल इन्वेस्टर को ये लगता है कि मेरा 15% ब्याज से मुझे 3 साल बाद मिल जाए तो भी मैं खुश हूँ, 10x नहीं मिलेगा तो भी मैं खुश हूँ. वीसी तो प्योरली बोलता है कि 10x नहीं मिला तो फिर तो ये तो लॉस है मेरे लिए. तो दोनों के एक्सपेक्टेशंस एंड दोनों का जो फंड साइज है उसमें बहुत डिफरेंस है. सो अगेन गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन, बोथ ऑफ देम कैन एग्जिस्ट टुगेदर. यस. सो एक तो आपको ये क्रिएट करना है कि यू वांट टू क्रिएट एक वन तो वीसी एक फंड फंड क्रिएट करना है. What are the other things? जी. सेकंड, आई थिंक इफ यू आर एबल टू ब्रिंग इन 100 टेक्नोलॉजीज फ्रॉम दृष्टि टू द मार्केट, ये बहुत बड़ा नंबर है. मुझे बहुत बड़ा खुद पे शक होता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट आई थिंक बट अचीवेबल है. अचीवेबल है. 100 टेक्नोलॉजी सर हम लाते हैं एकेडमिया से. मैं फाउंडर से नहीं ला रहा, फाउंडर तो अलग स्टार्टअप चल ही रहा है, राइट. एकेडमिक टेक्नोलॉजी टू द मार्केट लाना, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. फैकल्टी का खुद का जो माइंड ब्लॉक होता है वो कि नहीं मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ तक कैसे लेके जाऊंगा. फैकल्टी या स्टूडेंट का इंटरेस्ट बदल जाता है बहुत जल्दी कि एक नया रिसर्च आया, पेपर लिखा है, मेरे को जॉब लग रही है, मैं वहाँ जाऊँ कि मैं बैठ के आपका प्रोडक्ट बनाऊँ. स्टूडेंट के लिए ये भी आता है, वहाँ पे एक चैलेंज है. लेकिन शायद हमें ये बेनिफिट ये मिलता है कि अगर मैं शुरू की कुछ सक्सेस दिखा के उसका अच्छा प्रचार प्रसार कर सकूँ तो अच्छे लोग साथ में जुड़ेंगे. एंड इफ गुड पीपल कम टुगेदर देन नथिंग इज अनअचीवेबल. तो सेकंड इज जॉब, सॉरी टेक्नोलॉजी. थर्ड, मेरा जो डीएसटी का भी टारगेट, ऑफिशियल टारगेट मुझे मिला हुआ है. आई वांट टू क्रिएट 8,000 जॉब्स. 8,000 जॉब्स मुझे दृष्टि से क्रिएट करनी है. बाय व्हिच ईयर? 2027. ओके. अभी वो नंबर 1500 के आसपास है. आई थिंक ये भी ऐसा है कि इनिशियल सक्सेस दिखाए कि देखो हमने इस प्रकार जॉब क्रिएट करी है, एंड देन गुड पीपल गेट इंस्पायर्ड एंड कम टुगेदर. तो अल्टीमेटली यू नीड अ आर्मी फॉर एवरीथिंग. आर्मी इन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉइज इन द टीम, आर्मी इन फॉर्म ऑफ सपोर्टर्स, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट एक्सेट्रा, पीपल लाइक यू who actually put across our word कि हम कर क्या रहे हैं. If we get a army together then nothing is unachievable. लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट ने 8,400 समथिंग का टारगेट दिया है. जब ज्वाइन किया था तब जॉब क्रिएशन था करीबन 150, तो लग रहा था कि क्या नंबर पे जाना है, 1000 ही अचीव कैसे होगा. अब 1500 पे आया तो लग रहा है कि ठीक है 1500 कर लिए, 1000 तो क्रॉस हो ही गया, इसी को तो मल्टीप्लाई करना है. तो अब वी आर नॉट इन अ डेस्परेट सिचुएशन, वी नो हाउ टू डू इट, बट हाँ करना पड़ेगा, वो मेहनत लगेगी. तो अगेन हम भी सफ़र करते हैं बिकॉज वी आर नॉट एबल टू पे कॉर्पोरेट सैलरीज टू आवर एम्प्लॉइज. तो अमेजिंग पीपल, कुछ जो थोड़े सनकी से होते हैं, जिनको मिशन में कुछ अच्छा लगता है वो ज्वाइन करते हैं, एंड कुछ लोग जिनको दे समटाइम्स दे गेट अ बेटर ऑफर देन दे चूज टू मूव आउट. तो ऑब्वियसली वी स्लो डाउन, डिरेल नहीं होते लेकिन स्लो तो होते ही हैं. सो जो रियल लाइफ एक स्टार्टअप की मजबूरियां हैं हम सब, हमारे साथ भी होती हैं.
Thank you very much for sharing this insightful information to us, and thank you very much for giving us your time. I know that you are coming directly from Delhi to our studio, and thank you very much for joining with us. Please share your experience, that how you find this discussion, that how much helpful it is, and how much is your experience is all about. Thank you so much for again listening to me for more than an hour. I think I did not notice the time when we started, but one amazing thing that I liked about today's podcast recording was that it did not feel like a recording or a podcast at all. It felt like two people discussing the scenario. बस एक वो चाय की कमी थी, वरना वो चाय पे चर्चा जैसी फीलिंग आ जाती कि वी आर टू फ्रेंड्स, टू कलीग्स डिस्कसिंग कि पूरी दुनिया के क्या हाल चल रहा है, तेरी कंपनी में क्या चल रहा है और मेरी कंपनी में क्या चल रहा है. एंड आई थिंक मेनी थिंग्स, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद एनीबडी एक्सेप्ट जब मुझे बोर्ड में एक बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी होती है. व्हेन आई एक्चुअली स्पोक, और मैं स्टार्टअप का भी सेम चीज़ बोलता हूँ, व्हेन आई स्पोक थिंग्स विद यू, आई गॉट क्लैरिटी ऑन सर्टेन थिंग्स इन माई ओन माइंड वाइल स्पीकिंग कि अच्छा ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने करा, इसको तो ये भी कर सकते हैं. प्लस हियरिंग योर थॉट्स अबाउट नॉट ओनली द स्टार्टअप साइड ऑफ थिंग्स बट ऑल्सो अबाउट जनरल इकोनॉमी, द एंटायर वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, AI, एक्सेट्रा, जॉब लॉसेस. आई थिंक माई माइंड ऑल्सो नाउ मूव्स आउट टू अदर थिंग्स कि यार ये एक ऐसे पर्सन का थॉट है जो कि मेरी कम्युनिटी या मेरे बैकग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, बिकॉज अगेन आई मूव इन माई ओन सर्कल्स. तो हम सब जगह सेम ही चीज सुनते आते हैं. व्हेन आई एम स्पीकिंग विद यू, तो मुझे भी चार चीज़ और पता लग रही है कि ठीक है, एक कॉमन पर्सन सोच रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहे हैं अपन, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस. तो अगर मुझे भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना है, आई शुड हैव अ कंसिडरेबल थॉट प्रोसेस एंड अ थीसिस कि मैं इस सेक्टर में क्यों जा रहा हूँ, व्हाट डू आई लुक, हाउ डू आई एनकरेज पीपल लाइक यू कि नहीं गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है, हम चाइना से कॉम्पीट कर भी रहे हैं लेकिन नहीं भी कर रहे, हमें पता है कि हम हार रहे हैं, हम हार चुके हैं इन सर्टेन केसेस, फिर भी हम करे जा रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार हम कम्पीट ही नहीं कर रहे, हम तो अपनी खुद की ट्रेजेक्टरी एकदम पे जा रहे हैं, हम अपना खुद का पाथ बना रहे हैं. इसलिए हार जीत जैसे कुछ है ही नहीं, हम अपने जॉब्स लोगों को दे पाए, हमारी जीत है. चाइना क्या कर रहा है उससे हमें कोई फर्क लिटरली नहीं पड़ता. एंड हम इतने अमेजिंग मार्केट हो गए हैं कि चाइना हमारे यहाँ पे आके आप बना रहा है और बेच रहा है. ये भी हमारी एक जीत है कि हमारा इंटरनल मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग है. ये सब चीज़ें आई नाउ अंडरस्टैंड दैट आई शुड कम्युनिकेट मोर विद पीपल कि देखो ये रियलिटी है, इसलिए दृष्टि काम कर रहा है. एंड वी आर अल्टीमेटली फंडेड बाय गवर्नमेंट. तो मैं कहता हूँ हम क्वासी गवर्नमेंट है. आई सिट इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आई एम फाउंडेड बाय अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड आई एम फंडेड बाय अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. तो हम है प्राइवेट, सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन हम लिटरली गवर्नमेंट है. तो हमें भी गवर्नमेंट को बताना चाहिए दैट दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए हम बने हैं, इसलिए हमें आगे और काम करना चाहिए. वन वेरी गुड थिंग आई थिंक आई वांट टू पॉइंट आउट इन द लास्ट, आपने जो चाइना की बात कही उससे एक और चीज़ ये याद आती है कि चाइना इज सफरिंग अ लॉट अभी इन देयर इकोनॉमी बिकॉज ऑफ देयर ओवर डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट्स. इंडिया में आप, मैं, हम सब इतना हमने ग्रोथ करा है ओवर द पास्ट वन जनरेशन, और सिंस इंडिपेंडेंस में ही कहूँगा पूरा, कि वी नाउ हैव सच अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी कि नॉट ओनली डेटा, जो आप अभी बोल रहे थे कि डेटा हम बहुत कंज्यूम करते हैं, हम हर चीज़ बहुत कंज्यूम करते हैं. इस वजह से वी आर स्टिल सर्वाइविंग, और हम स्लो डाउन या रिसेशन जैसी चीज़ से उभरे हुए हैं. क्योंकि अगर जब तक रेंस आती रही और फार्मर लकीली अपना काम करता रहा, पूरी इकोनॉमी ट्रैक पे रहेगी एंड हम लोग अच्छा करते रहेंगे. इंडिया विल कीप ऑन ग्रोइंग विद गुड विशेस फ्रॉम पीपल लाइक यू, हार्ड वर्क फ्रॉम पीपल लाइक अस एंड एवरीबॉडी अराउंड. तो आई थिंक एक पॉजिटिव टोन का पॉडकास्ट, एक पॉजिटिव टोन की इंटरेक्शन can bring a lot many things together and can give a lot of clarity to both the sides, which I believe will do wonders in the long term. Thank you very much for giving us your time. Thank you so much, Indrani. Thank you so much for having me. So this was a podcast with Mr. Aditya Vyas, who is the CEO of Drishti Unit of IIT Indore. इस पूरे podcast में हमने उनके बारे में भी जानने की कोशिश की है, and I guess you found lot of insights and lot of ideas about government policies and how IIT is actually working. आदित्य जी के बारे में भी हमको बहुत कुछ जानने को मिला है कि कहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू किए थे. So thank you very much for watching this entire podcast, and please subscribe our channel so that you can have all the updates through our channel, and also subscribe TSBP News, TSBP Shorts and TSBP Clips, because ये TSBP Clips में हम इस टोटल पॉडकास्ट के छोटे-छोटे टुकड़े पब्लिश करते हैं so that कम समय में आप इस पूरे पॉडकास्ट को कवर कर सकें और अपने नॉलेज को और बढ़ा सकें.
So again, thank you very much for watching the podcast and signing it off.